वेलकम एवरीवन। तो आज का जो थर्ड सेशन है उसमें हम अपने टॉपिक कवर करेंगे एज ऑफ महाजनपद, और उसके बाद जो मगधन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर एंड पोस्ट मौर्यन एम्पायर, इन तीन चार टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। और स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ एज ऑफ महाजनपद। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जना वॉज ट्राइब, जनपद a big area, and Mahajanpad even bigger area. Okay, तो महाजनपद मीन्स जो एरिया पहले लेटर वैदिक एज के टाइम पे बहुत छोटे छोटे थे, ग्रेजुअली वो कंसोलिडेट होते गए, either they conquered each other, जहां पे they merged with each other, and that is why we see that consolidation of empire happened at this time period. And this period is also called as second period of urbanization. First period was related with Indus Valley civilization, and second period is related with this 6th century period, that is age of Mahajanpad, this time period, 600 BCE to 300 BCE. Okay, so let me tell you that what was the basic characters of these Mahajanpad is that some of them were monarchies and other was the republic. For example, Malla and Vajji, these two Mahajanpads were actually republicans, that they were elected by people. Gana Sangha, this is what they call. एंड उसके अलावा देयर वर टोटल 16 महाजनपद एक्चुअली, जो अभी हम देखेंगे मैप में भी। और उसमें से ये जो दो है दे आर रिपब्लिकन, और बाकी जो रिमेनिंग है दे वर मोनार्कीज, दैट किंग वाज द मोस्ट पावरफुल फिगर इन एम्पायर एंड ही यूज्ड टू रूल ऑल दीज एरियाज अंडर हिज ओन कमांड। तो लेकिन देयर वर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो इनके पास भी थी, लेकिन इसमें क्या था, ये इलेक्टेड होते थे रिपब्लिकन। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू शाक्य क्लैन, जिसमें से जो बुद्ध जो थे वो उसको बिलोंग करते थे। तो व्हाट इज द, फिर इनका पावर स्ट्रगल कैसे है, एज आई टोल्ड यू कि दे स्टार्टेड fighting with each other for supremacy, and what happened ultimately in this century, that among from these 16 महाजनपद मगधा became victorious, और सबसे ज्यादा पावरफुल बनके मगध जो है एम्पायर वो आता है। तो टाइम पीरियड एज आई टोल्ड यू अप्रोक्सीमेटली, एज आई टोल्ड यू नो वन कैन फिक्स दिस पर्टिकुलर टाइम एज महाजनपद ना, कुछ तो उसका राइज का कुछ टाइम पीरियड रहा होगा, देन आफ्टर इट डिक्लाइन का भी रहा होगा। फिर इसके बाद ज्योग्राफिकल स्प्रेड, दैट व्हाट वाज द एरिया दैट वाज कवर्ड अंडर दिस Mahajanpad. In next slide you will see that there is a map that have included, and through that map you can understand that कि इन कौन सा महाजनपद कहाँ पे था। तो मोस्टली इट वाज इन दिस पार्ट, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। As I told you, there were 16 Mahajanpad. Or how do we know that there were 16 Mahajanpad? There should be some source from which we can get this information that there were 16 Mahajanpad. First one is this Anguttara Nikaya. This is a Buddhist text. It tells us a list about these 16 Mahajanpad. And another is Bhagavati Sutra. This is a Jaina text. Don't get confused with Vaishnavite text or Hinduism related text. Bhagavati Sutra is actually a Jaina text. And it also provides a list of all 16 Mahajanpad. So even Mahabharata and various Puran, these also mention these Mahajanpad. Okay, you may heard के जो कुरु है, कुरु जो महाजनपद है वो कुरुक्षेत्र के रीजन में है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ आएगी। मगध की जो मगध का जो रूलर था, ही वाज आल्सो कंटेम्पररी ऑफ पांडवास, कौरवास एंड पांडवास ओनली। तो उस महाभारत से भी हमें बहुत सारी इन महाजनपद की लिस्ट मिलती है। So some of these Mahajanpad were republic, as I told you, and they were confined in northern part, and they were contemporary of Buddha. So these are some of the names that are given for this Mahajanpad. First is Sakyas of Kapilvastu, वही again जिससे बुद्ध रिलेट जो थे बिलोंग करते थे। Then Bagas, then Mauryas, okay, and Kalamas, Videhas of Mithila. These are the areas where these Mahajanpad were found. Kolyas, Lichvis, Mallas. I told you na, Lichvis and Mallas, these were actually republican empires. फिर ये ओके, दिस इज द लिस्ट। और ये लिस्ट थोड़ी थोड़ी वेरियस तरीके से करेगी, दैट समटाइम्स नेम्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट
Mahajanpads in different texts. So this is the map. Mahajanpad, this is the approximate time that is given. I told you Mahajanpad and Janpad. Janpad is for smaller areas. For example, this one, this one, this one. Okay, ये कुंतल region. एंड महाजनपद एरिया जो बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसमें सबसे ये देखिए, ये भी आपको याद रखा है कंटेम्परेरी एम्पायर इसका. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस महाजनपद फर्स्ट वाज कंबोज, देन गांधार, ओके, देन दिस मत्स्य, कुरु, पंचाल, कोसला, काशी, वत्सा, मल्ला, वज्जी, मगध. दिस इज मगध विद दिस कैपिटल राजगृह, छेदी. अब यू में नोटिस के ये देखो यहां तक अवंती, दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट महाजनपद विद इट्स कैपिटल इन उज्जैनी एंड माहिष्मती. दीज वर टू कैपिटल्स ऑफ अवंती. तो यहाँ पे आ जाता है आपका विंध्या सतपुड़ा रेंज. तो सारे एम्पायर यू कैन सी कि ये सब नॉर्थ में है. ओनली वन महाजनपद दैट इज अस्मक एम्पायर, ये जो है दिस इज साउथ ऑफ विंध्यास, दैट इज सेंट्रल एशिया के ये अराउंड में एम्पायर है. ओके तो ये आपने अभी मैंने आपको एक लिस्ट दे दी कि जो जो आप ये देखो अंग भी है, यहाँ पे अंग एम्पायर है. तो ये 16 जो महाजनपद है. तो देखने गया. एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. You're audible. ओके सॉरी, देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच. यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू हो रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको स्क्रीन शेयर करके क्लासेस, ये आज की क्लास है वो करवा दूंगी. इज इट ओके टू एवरीवन? आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच. सो we were discussing that where were these Mahajanpads found. तो आपने देखा कि यहाँ पे गंधार है, that is north western region of India, present है Pakistan region, and same with Kamboj, then Kuru, Matsya, Surusen, Panchal, Koshala, then Kashi, Malla, Vajji, Magad, Ang, Asmaka and Avanti. सो ये मैप जो है, कभी भी जो भी आप हिस्ट्री में कोई भी एम्पायर को पढ़ेंगे तो अपना मैप जरूर साथ में रखें. कभी आप सातवाहना एम्पायर मानो आप पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत जरूरी है कि सातवाहना एम्पायर का आप साथ में मैप खोलिए कि इंपॉर्टेंट कि उसका रीजन कहाँ था, उसकी डायनेस्टी कहाँ थी, तो और उनका विस्तार कैसे होता, दैट हाउ दिस एम्पायर गॉट एक्सटेंडेड टू अदर एरियाज एंड ओवरटुक अदर एरियाज. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट political structure of these Mahajanpads. So as I told you, monarchies, I think this is repetitive here. Monarchies, some of them were monarchies, some of them were republics. For example, Malla and Vajji, they were republics. And Shakya clan, for example, they were also republic. And how did their economy work? First of all, they were mostly, they relied on agriculture, the primary occupation with rice, wheat, barley being major crops. And improved irrigation techniques contributed to increase agriculture productivity. As you can see that this region exists in a river valley. वहां पे यमुना भी है, वहां पे गंगा भी है, वहां पे गंडक भी है, वहां पे काली रिवर भी है, सोन भी है. तो इस तरह there are lot of rivers that are found in this particular region. So what happens कि यहाँ पे इसकी existence की वजह से the agriculture flourished, and due to this flourishment of agriculture, even the population, trade, commerce, each and everything flourished a lot. So this led to second phase of urbanization. Then what about trade and commerce? So internal as well as external trade was a main feature of each and every important dynasty of India. कोई भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी को आप पिक करोगे, इवन गुप्ता एम्पायर को अगर आप पिक करोगे तो आप देखोगे उसकी कैपिटल तो चाहे बहुत इनलैंड में, बट दे आल्सो हैड ओवरसीज ट्रेड एज वेल. तो कोई भी इंपॉर्टेंट रूलर है, मानो आप विजयनगर एम्पायर पढ़ रहे हैं, चोला चेरा पांड्यास, किसी को भी पढ़ रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ दीज एम्पायर्स ऑलवेज हैड दिस trade relation with foreign countries. Then as I told you, urbanization, how did this rise in urbanization took place? What happened due to this rising prosperity, this flourishment of agriculture and other activities associated with trade and commerce? तो यहाँ पे emerge होता है cities and towns जो है उनका rise होता है, बड़े बड़े market place,
ट्रेड रूट जो है उनका यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ये वाला, इसे वैसे भी इस पार्ट को उत्तर पथ कहा जाता है। उत्तर पथ, एंड जो साउथ से रास्ता ट्रेड रूट जाता है उसे दक्षिण पथ कहा जाता है। तो एज यू कैन सी दीज महाजन पथ, दीज इंपॉर्टेंट महाजन पथ, दे ऑल फाउंड इन दिस उत्तर पथ रीजन ओनली। तो इस तरीके से वो उसके जो ट्रेडर्स के ऊपर टैक्सेशन लगाते थे, एंड ड्यू टू दिस टैक्सेशन दे वर एबल टू अर्न अ गुड टैक्सेस, गुड एक रेवेन्यू अच्छा अपना कलेक्ट कर लेते थे। देन व्हाट अबाउट सोसाइटी? So again, as you know that after later Vedic age, this Varna system got consolidated, and we find that in this Mahajanpad there were 4 Varnas, again Brahmana, Kshatriyas, Vaishya, and Shudras, and their social mobility was also limited. That means that they were not able to move from one particular Varna to another. This was not allowed and even not possible. So this is so in a way the society got more consolidated and integrated. Then life and culture, diverse cultural practices and lifestyles with significant advancement in arts and crafts and architecture that took place. ये इस तरह से होता है कि देखिए जब कहीं भी आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, तो प्रॉस्पेरिटी जब यहाँ पे बढ़ती है तो वहाँ के जो रूलर्स होते हैं, जब वहाँ के लोग होते हैं, उनका फिर फोकस जाता है कि वो अब फाइन आर्ट्स, क्राफ्ट्स, आर्किटेक्चर उसके ऊपर फोकस दें। तो यहाँ पे भी वही होता है कि ये लोगों ने फिर इन चीजों के ऊपर फोकस करना शुरू करा। दैट एक प्रॉस्पेरिटी आ गई। अब एस्थेटिकल सेंस, अपनी कल्चरल जो उनका सेंस था उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बहुत सारे क्राफ्ट्स वगैरह, आर्किटेक्चर को बढ़ावा देता है। देन इनके रिलीजन एंड फिलोसफी, व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन, व्हाट काइंड ऑफ फिलोसफी दे बिलीव्ड और फॉलोड। So religious development, like they continued worship of Vedic god like Indra, Varun, sun god, and others as well. But at the same time, there was rise of new religious movements. As you read earlier in earlier classes, that Jainism and Buddhism, उनका भी इसी टाइम पे rise होता है. For example, you see that Buddha, he belonged to this Sakya clan only, and they were one of these Mahajanpad एंड जनपद ओनली। पहले तो जनपद था, फिर वो बड़ा होता हुआ महाजनपद बन जाता है। तो इस तरीके से आप हेलो ओके देन important Mahajanpad, there were 16 Mahajanpads as I told you, but there are a list of 4 to 5 Mahajanpad that I provided you for your basic understanding. Is that Magadha emerged very powerful Mahajanpad at the later stage, that is around 4th to मंडे को काम बढ़ नहीं जाता। एग्जैक्टली क्या आप मुझे देख सकते हैं? कोई स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर सकता है? क्या आप मुझे आप देखो सुन सकते हैं? मैं आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो रही है, बट आपकी वीडियो दिख रही है विजिबल। ओके, अच्छा यही ठीक है। तो आप देखेंगे कि मगध ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आई हैव प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, what happened कि यहाँ पे मैंने I have provided a list of 4 to 5 Mahajanpad so that you can understand some basic features about this Mahajanpad. For example, Magad, this empire, it became victorious. So first one is Magad. You will study in subsequent classes कि हम मगध को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे मगध पहले एक बहुत ही सिंपल महाजनपद था, जस्ट लाइक अनदर 15 महाजनपद, और उसके बाद ये मोस्ट पावरफुल बन जाता है। एंड व्हाट वर द एलिमेंट्स दैट हेल्प्ड मगध इन इट्स राइज। ठीक है, फिर उसके बाद है कोसाला। कोसाला की कैपिटल थी श्रावस्ती, और जो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था प्रसेनजित।
उसको भी आप जब आप मगध के साथ उसके क्या मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे एंड रिलेशंस थी, यू विल स्टडी अबाउट देम इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. Then there is Vajji. Vajji, as I told you, it was a configuration of 8 clans. कि बहुत सारे कोई clans. सा भी डुप्लीकेट. अच्छा. Who is acute? इनबाउंड वाला. Kindly mute yourself. हम्म. Ankit, kindly mute yourself. ओके. सो वज्जी जो था, इसमें बहुत सारे क्लैंस और ट्राइब्स वो इकट्ठे होके उन्होंने एक एम्पायर बना रखा था जो कि एक रिपब्लिकन था. एज आई टोल्ड यू कि दे यूज्ड टू सिलेक्ट किंग अमंग दीज क्लैंस ओनली. तो उसमें से चुन के वो एक अपना राजा बना देते थे और वो जो राजा था वो ही यूज्ड टू रूल फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. देन देयर इज वत्स. its capital was in Kaushambi and it was one of the most significant urban center and इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं उदयन. ओके. फिर अवंती. अवंती की 2 कैपिटल थी, एज आई टोल्ड यू. वन वाज उज्जैनी एंड अनदर वाज महिष्मति. एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं प्रद्योतित. तो उसमें आप ना इसमें एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्ध. तो उसमें एक अवंती का भी जिक्र था, बट अवंती ही इज नॉट रिलेटेड टू लाइफ ऑफ बुद्ध क्योंकि अवंती में वो कभी आते नहीं. बट जो मगध के एक रूलर थे हरण्यक डायनेस्टी के, उनके इनके साथ रिलेशंस थे. तो कई बार बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ही वाज फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म एज वेल. तो मे बी उसके कारण अवंती के ऊपर कोई बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस था, बट इट वाज नॉट ट्रू. Then there is culture and education. So culture center like Takshila and Nalanda. You must have heard about these universities. कि नालंदा चलो उसका जो फाउंडेशन है उसे कंसोलिडेट करा गया गुप्त एम्पायर में. जो कुमार गुप्त थे उन्होंने नालंद का कंसोलिडेट करा. लेकिन यहाँ पे जो नालंद का मेंशन है वो एक छोटी सी गुरुकुल या पाठशाला की तरह यहाँ पे इसका सेंटर था. और तक्षशिला आपको पता है नॉर्थ वेस्ट जो है पार्ट इंडिया का, प्रेजेंट डे ये पाकिस्तान के अराउंड, वहां पे ये एक बहुत ही रिनॉन्ड यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने हुए आते थे. फिर लिटरेचर की बात करी जाए तो संस्कृत लिटरेचर का बहुत यहाँ पे डेवलपमेंट होता है. लॉट ऑफ टेक्स्ट वर रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ओनली. अलोंग विद दैट वेरियस टेक्स्ट ऑफ पाली एंड प्राकृतिक इज दैट आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर आल्सो कंपाइल्ड इन दिस टाइम पीरियड ओनली. सो इस तरीके से आप देखते हो कि जो 16 महाजनपद जिनका राइज 6th सेंचुरी बीसी में होता है, तो वो धीरे धीरे आके उसे जो मगध एम्पायर है वो धीरे धीरे सबको मर्ज कर लेता है और खुद जो है वो बहुत पावरफुल बन जाता है. तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा दैट इज राइज ऑफ मगध. दैट हाउ डिड मगध बिकम सो पावरफुल दैट इट वाज एबल टू डिफीट ऑल अदर सिग्निफिकेंट एम्पायर्स इन इट्स पेरिफेरल एंड नेबरिंग रीजन्स. If you have any doubt about Mahajanpad, this chapter of Age of Mahajanpad, now you can ask. Then we will proceed further. Any doubt? Yes. मैम 3 डाउट्स थे. एक आपने स्टार्टिंग हुआ था महाजनपदस को हम क्या बताते, सेकंड पीरियड ऑफ Urbanization. ओके मैम. एंड मैम अवंती की 2 कैपिटल्स बताए थे आपने, वो जी. 2 कैपिटल्स कौन से थे मैम? एक माहिष्मति, एक उज्जैनी. उज्जैनी is present in Ujjain only. ओके मैम. एंड मैम यहाँ पे 5-6 जो महाजनपद मेंशन है पीपीटी में, हमें सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देना है या बाकी 16 को भी पढ़ना है थोड़ा? आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग 16 के 16 महाजनपद को पढ़ना है और वो आपकी बुक में इंक्लूडेड है विद मैप, और उनके बारे में बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें दी हुई है. बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, उस टाइम के सबसे ज्यादा जो पावरफुल कह लो ना, ये वो वाले थे, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर दिया. ओके. आपको 16 के 16 महाजनपद के बारे में पढ़ना है वैसे. यस मैम, थैंक यू मैम. ओके. एनी अदर डाउट? Okay. Then next chapter is the rise of Magad. This chapter is very, very, very important because a lot of questions have been asked from this particular chapter only. And after that, क्योंकि मौर्यंस जो थे वो मगध के ही रूलर थे. मगध एक रीजन का नाम है जो ईस्टर्न यूपी कह लो और बिहार का रीजन है उसमें आता है. और जो मगध एम्पायर का राइज होता है इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डायनेस्टीज थी,
डायनेस्टी थी। इसमें सबसे पहले हरण्यक डायनेस्टी आएगी, फिर नंद भी आएंगे, नंद के बाद आपको आप देखेंगे कि ये मौर्यस आएंगे, मौर्यस के बाद यो है शुंग आएंगे। तो इस तरीके आप सब्सिक्वेंटली देखेंगे कि एक के बाद एक डायनेस्टी मगध रीजन में आके रूल करेगी। सो सबसे पहले अर्ली हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल एडवांटेज वाज दैट, सबसे पहले ये कारण आपको जानना पड़ेगा कि व्हाई ओनली मगध, बाकी सब नहीं, सिर्फ मगध ही इतना पावरफुल कैसे बन गया। तो उसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये एक ऐसे रीजन में है वेयर इट इज कवर्ड बाय रिवर्स फ्रॉम ऑल द साइड्स। जो सोन रिवर हो गई, ऊपर से गंगा की ट्रिब्यूटरीज ऊपर से भी आ रही है, ये सब उस जगह पे आके मर्ज करती हैं। इसीलिए इसे वाटर फोर्ट, जो जल दुर्ग है वो भी कहा जाता है। इसके अलावा जो इसकी दूसरी कैपिटल थी राजगृह, आज के बिहार में, वो हर तरफ से जो हिल्स हैं उससे घिरी हुई थी। सो इट वाज नॉट इजी टू इन्वेड और टू कॉन्कर मगध रीजन बाय एनी अदर रूलर। फिर इसके ये जिस रीजन में है वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। फॉर एग्जाम्पल यू वुड से कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इट इज इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ मगध रीजन। इसके बिल्कुल साउथ में जो है वो पड़ता है छोटा नागपुर, और वहां पे आज भी आप पढ़ेंगे कि वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। वहां पे आयरन मिलता है, चलो कोल तो आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैसे कोल भी वहां पे मिलता है। और ऐसे करके वो जो वहां से आयरन मिल रहा था उससे वो वेपन्स तैयार करते थे, जिसकी वजह से उन्हें मिलिट्री एडवांटेज मिला। फिर वो जिस पार्ट में थे वहां पे फॉरेस्टेड रीजन था। आज भी आप देखेंगे जो सेंट्रल एशिया का ये वाला छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है, वहां आज भी बहुत ट्राइब्स रहती है क्योंकि वो अभी भी फॉरेस्टेड एरिया है। और उस फॉरेस्टेड एरिया में बहुत सारे जो थे एलिफेंट्स रहते थे। तो उन एलिफेंट्स की हेल्प से व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू अटैक अदर नेबरिंग एरियाज एंड यूज्ड टू कॉन्कर उनको। तो वो उस तरह से उनको कॉन्कर कर लेते थे। बट व्हाट हैपेंड, फिर उसके अलावा इनकी एक इनके जो रूलर्स थे, दे वर वेरी एम्बिशियस रूलर। कि सबसे पहले जैसे आप देखोगे बिंबिसार हो गया, अजात शत्रु, उदयन हो गया, फिर उदयन के बाद महापद्म नंद हो गए, महापद्म नंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक हो गया, अशोक के बाद पुष्यमित्र शुंग। तो इस तरह से आप जब देखते जाओगे तो यू वुड नोटिस कि बहुत ज्यादा यहाँ पे जो रूलर्स हैं वो एम्बिशियस है। एंड अदर देन दैट यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बहुत थी, क्योंकि गैंगेटिक रीजन में था, यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी थी, इंडस्ट्री अच्छी थी। तो वो प्रॉस्पेरिटी के कारण टैक्सेशन सिस्टम अच्छा था, रेवेन्यू अच्छा था, और उसकी वजह से दिस एम्पायर गॉट वेरी पावरफुल। एंड इन्होंने फिर एक चीज बहुत करी कि इन्होंने डिप्लोमेसी का यूज करा। दे यूज डिप्लोमेसी एज अ मीन और एज अ वेपन टू कॉन्कर अदर रीजन। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जैसे बिंबिसार है, वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस करता है नेबरिंग कंट्रीज के साथ। फिर उसे जो ये कोशला रीजन है, सॉरी ये काशी है, वो उसे डाउरी में मिलता है बिंबिसार को। तो इस तरह जो काशी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद था वो मर्ज हो गया। फिर वो एक बाकी जो उसका सन होता है अजात शत्रु, वो नेबरिंग जो रीजन्स हैं उनमें भी वॉर वेट करता है। वो मल्लास को, वज्जिस को, सबको कॉन्कर कर लेता है, क्योंकि वो रिपब्लिकन्स थे। दे वर नॉट एज पावरफुल एज दिस मगध एम्पायर। तो वन बाय वन मैट्रिमोनियल अलायंस करके, डिप्लोमेसी के थ्रू इन सब रूलर्स ने इनको कॉन्कर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज एंड रूलर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली है हरण्यक डायनेस्टी। ये वही 6th से 5th सेंचुरी टाइम पीरियड में होती है। लेकिन आपको ये चीज एक याद रखनी है कि जो मगध है, इससे पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए हैं जिनका जिक्र महाभारत में आता है। जैसे कि रूलर जनसंघ, उनका भी जो मेंशन है वो महाभारत में आता है। एंड ही वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन बैटल ऑफ, इन सब बैटल्स में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो वो मगध के बहुत पावरफुल रूलर्स थे। फिर उसके बाद बृहद्रथ जो डायनेस्टी है वो भी आती है। फिर उसके बाद हरण्यक डायनेस्टी आती है। तो इससे ऐसा नहीं कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है मगध का राइज, इससे पहले ही मगध जो था एक पावरफुल एम्पायर था। तो हरण्यक डायनेस्टी के दो इंपॉर्टेंट रूलर, फर्स्ट इज बिंबिसार। तो बिंबिसार ने क्या करा, ही यूज्ड मैट्रिमोनियल अलायंसेस एज आई टोल्ड यू कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड स्ट्रेटेजिक मैरिजेस, इसके थ्रू उन्होंने कॉन्कर करना स्टार्ट करा नेबरिंग किंगडम्स को। फॉर एग्जांपल काशी उन्हें डॉरी में मिल गई तो उनको वॉर भी नहीं करनी पड़ी। बट उनके जो सन थे अजात शत्रु, ही गॉट हिज रिलेशन विद काशी गॉट खराब हो गए। खराब होने की वजह से जो काशी के साथ उनको बहुत, काशी के रूलर के साथ बहुत झगड़ा उनको करना पड़ा। एंड बैटल के थ्रू ही वो काशी को जीत पाए। फिर जो लिच्छवीज थे एंड वैशाली किंगडम थी, उनके साथ भी इसने वॉर के थ्रू ही अजातशत्रु ने उनको कॉन्कर करा। फिर हरण्यक डायनेस्टी के बाद जो है शिशुनाग डायनेस्टी आती है। शिशुनाग डायनेस्टी जो है उसने भी पावर को कंसोलिडेट करा। और इन्हों की एक ये फीचर था
1 second, just 1 second. हाँ, sorry for I got one phone call that was important to attend. तो शिशुनाग डायनेस्टी जो है वो क्या करती है, इन्होंने टेम्परेरीली अपनी कैपिटल, दे शिफ्टेड देयर कैपिटल टू वैशाली, बट अगेन दे हैव टू मूव बैक टू पाटलिपुत्र बिकॉज दैट हैज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. तो पाटलिपुत्र जो है आज का जो पटना रीजन है उसके आसपास ही है, तो बिहार में ही थी ये डायनेस्टी. देन उसके पास आता है, उसके बाद आती है नंद डायनेस्टी. नंद डायनेस्टी इज around 4th century, and you should remember this dynasty because during the time period of this dynasty only that Alexander attacked India in 326 BCE. तो ये नंद एम्पायर was so strong, so powerful that Alexander could not gather courage to attack this kingdom, and there was important ruler called Mahapadam Nand. He was also very, very, very powerful ruler, and his successors were also powerful. And during their time period only, Alexander attacked India, but could not gather courage, as I told you, and could not cross ब्यास तक ही रह गया सिमट के, और आगे आने की हिम्मत ही नहीं करी. देन उसके बाद नंद को, जो नंद का लास्ट रूलर था धननंद, उसको जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो हराते हैं विद हेल्प ऑफ चाणक्य, दैट इज कौटिल्य भी उन्हें कहा जाता है. ओके, तो ये दोनों डिप्लोमेसी के थ्रू जो है एंड वॉर लड़के जो नंद है उनको हरा देते हैं. और इस तरीके से अब देखिए मौर्यन डायनेस्टी अब एस्टेब्लिश हुई है. उससे पहले और डायनेस्टीज भी चल रही थी. और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, ही वाज फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, यू विल रीड इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. और उसके बाद जो था अशोक है, उनका ग्रैंडसन था. ग्रैंडसन इसलिए कि चंद्रगुप्त का सक्सेसर वाज बिंदुसार, एंड बिंदुसार जो सन वाज अशोक द ग्रेट. तो बट अशोक को मिलिट्री स्ट्रेंथ से ज्यादा इस चीज के लिए याद करा जाता है कि दैट ही स्प्रेड बुद्धिज्म इन वेरियस एरियाज. उन्होंने बेरी घोषा, दैट इज कॉन्कर, किसी को वॉर के थ्रू कॉन्कर करने को छोड़ के ही यूज्ड पॉलिसी ऑफ धम्म घोष, दैट धर्म के थ्रू, इन्फ्लुएंस के थ्रू लोगों को फॉलोअर बनाना, ये पॉलिसी जो अशोक ने फॉलो करी. तो ये आप पढ़ेंगे कि बेरी घोषा से धम्म घोष की तरफ वो अपना शिफ्ट कर लेते हैं. फिर अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल डेवलपमेंट क्या होती हैं इस एम्पायर में. सो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, एक इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो मगध एम्पायर का था. मगध में सिर्फ हम मौर्य की बात नहीं कर रहे, हम हरण्यक, नंद, इनकी और मौर्य तीनों की बात कर रहे हैं. तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एफिशिएंट था. इनकी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी, इनके ऑफिशियल्स वेल एस्टेब्लिश थे. टैक्सेशन सिस्टम वाज वेरी साउंड, हर चीज के ऊपर ये टैक्स लगाते थे, प्रोपोर्शन में लगाते थे, एक्सप्लॉयटेटिव नहीं था. 1/3 to 1/4 जो टैक्स एग्रीकल्चर के ऊपर भी होता था, गिल्ड्स के ऊपर भी होता था, और जो भी उत्तर पथ से ट्रेड गुजर रहा है ये उसके ऊपर भी टैक्सेशन लगाते थे. फिर उसके बाद ये देखिए, आप देखिए कि इनकी इकोनॉमी इट फ्लरिश्ड अ लॉट बिकॉज दे रिजाइडेड इन फर्टाइल रीजन्स. स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स लाइक उत्तर पथ, एज आई टोल्ड यू, और नेचुरल रिसोर्सेज लाइक आयरन इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, वो भी इनको उसका एक्सेस था. फिर अर्बनाइजेशन, एज आई टोल्ड यू कि दिस इज पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन. तो यहाँ पे फिर से राइज स्टार्ट होता है बहुत ही पावरफुल किंगडम्स का और बहुत ही पावरफुल रूलर्स का. फिर रिलीजन एंड कल्चर, इन लोगों ने बहुत ही रिलीजन एंड कल्चर को बढ़ावा इसलिए दिया कि कोई भी जो इंपॉर्टेंट रूलर होता है ही ऑलवेज ट्राई कि उसका जो एम्पायर है उसमें वो उसका दिखे कि वो कितना पावरफुल है, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के थ्रू प्रोपेगेट हर रूलर करता है. और ये काम मौर्यज ने भी करा. आप मौर्यन एम्पायर के चैप्टर में पढ़ेंगे कि उन्होंने तो आर्ट को एंड आर्किटेक्चर को बहुत बढ़ावा दिया. आर्किटेक्चर इन रॉकेट जो फॉर्म के रॉक को काटते थे और अंदर कुछ भी मोनेस्ट्रीज जहां रहने के लिए जगह बनाते थे, फॉर एग्जांपल बाराबर केव्स इन बिहार. तो इस तरीके से, बट जो मेनली यहाँ पे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो था उसको भी बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है, क्योंकि जो फर्स्ट रूलर है दिस हरण्यक डायनेस्टी में के बिंबिसार
एंड अजातशत्रु, दे वर कंटेम्परेरी ऑफ बुद्ध, ये बुद्ध के कंटेम्परेरी थे एंड बुद्ध के इन्फ्लुएंस में आके इन लोगों ने बुद्धिज्म को भी अडॉप्ट करा था। तो इस तरीके से इन रूलर्स ने जब बुद्धिज्म को अडॉप्ट करा तो उसके बाद इन्होंने ये भी कोशिश करी कि इस रूल को, इनका जो बुद्धिज्म है उसका प्रभाव को और ज्यादा बढ़ाया जाए। ओके, देन व्हाट वाज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मगध एम्पायर? मगध का डिक्लाइन कब होता है? जब मौर्यन डायनेस्टी को, जो इसका लास्ट रूलर था बृहद्रथ वाज लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ही वाज किल्ड बाय हिज ओन आर्मी जनरल पुष्यमित्र शुंग। So in a way, Pushyamitra Shunga was cause of decline of this Magadhan as well as Mauryan Empire. And उसके बाद जो एम्पायर था, कभी भी इतना बड़ा, कभी नहीं, मतलब और 200-300 साल में एक इतना बड़ा एम्पायर बन के तैयार नहीं हो पाया। एंड यू विल सी राइज ऑफ बिग 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 किंगडम इन 3rd century 4th century ओनली, जब गुप्तास जो है वो पावर में आते हैं। तो जब इनका फॉल हो जाता है मगधन एम्पायर का, देन this empire got shattered, it got converted into smaller kingdoms, like one of them was Satvahana, then Vaktak rulers, they came into existence. In northwestern part, these are Shunga, Kanvas, Kushanas, they came into existence. In the northwestern part of India, Indo-Greek, वो रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक जो इनका एक्सटेंट था इनके एम्पायर का, जो आपको अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा, तो वो धीरे धीरे सुकड़ता गया और ये जो इसका जो एम्पायर है वो उसका बैल्कनाइजेशन कह सकते हैं कि वो होके एक बड़ा एम्पायर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड, जो मगधन एम्पायर से रिलेटेड जो भी अपने क्वेश्चन है आप पूछिए, फिर इसके बाद हम मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे। Ma'am, as you said, the decline of Magad, was it because of Pushpamitra Sung, or like Mauryans couldn't, like it was written in the PPT that subsequent Mauryan emperors were not able to handle as much area. So is he the cause of, or like later his dynasty was the cause of decline of Magad, or was it Maurya dynasty's subsequent emperors who were not able to like handle the area they conquered or had influence over? Okay, let me tell you one thing. कोई भी एम्पायर व्हेन इट गेट्स डिक्लाइन, इसका डिक्लाइन स्टार्ट होता है, देयर इज वन सिंगल फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टोटल डिक्लाइन। कुछ ना कुछ एम्पायर के अंदर इनहेरिट जो वीकनेसेस हैं वो स्टार्ट हो जाती है आनी, और जो एक जो सिग्निफिकेंट इवेंट है दैट वर्क्स एज कैटलिस्ट टू दैट लीड्स टू डिक्लाइन ऑफ सच बिग एम्पायर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, अशोक का he started pacifist policy that he did not wage war against any important kingdom। और जब आप देखेंगे कि उसके साउथ में चोला चेरा पांड्या की जो पावर थी वो कंसोलिडेट होके वो स्ट्रॉन्ग रूलर्स बन रहे थे, तो उसने कभी भी उनके ऊपर अटैक नहीं करा। फिर उसके बाद जो आर्मी थी उसे भी डिसबैंड कर दिया गया। फिर जो उसके खुद के ही सक्सेसर्स थे, दे वर वेरी वीक, वो इतने एम्बिशियस नहीं थे कि वो उसके इतने बड़े एम्पायर को संभाल पाए, ना ही वो इतनी अच्छी उनमें मिलिट्री कैपेबिलिटीज थी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे एम्पायर सुकड़ता गया, और उसमें फिर ये भी हो गया था कि इनकी इकोनॉमी भी बहुत वीक हो गई थी। कुछ हिस्टोरियंस ब्लेम करते हैं अशोक को कि अशोक के कारण जो मगधन एम्पायर है, जो मौर्यन एम्पायर है, उसका डिक्लाइन हो जाता है। उसके पीछे ये कारण था कि ही मेड अराउंड 80,000 स्तूप उसने बनाए थे, जिसकी वजह से जो स्टेट का एक्सचेकर था उसके ऊपर बहुत भारी बर्डन आ गया। तो वो जब आपके पास रेवेन्यू है नहीं और आप खर्चा करे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उनकी इकोनॉमी बहुत वीक हो गई थी, और इंटरनल रिबेलियंस भी स्टार्ट हो गए थे कि लोगों ने रिबेलियन करना स्टार्ट हो गया। तो बट ये जो पुष्यमित्र शुंग थे, ये फिर ये कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने, जो बृहद्रथ थे लास्ट मौर्यन रूलर, उनको पूरी आर्मी के सामने, जो आर्मी जितनी भी थी और वो मिलिट्री जनरल थे, सबके सामने उसने बृहद्रथ का मर्डर कर दिया था, जो मार दिया था, और कोई भी आदमी उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं हुआ। और ये माना जाता है कि उसका कारण ये था बिकॉज पीपल वर सो मच डिससेटिस्फाइड विद रूल ऑफ मौर्यंस दैट दे डिड नॉट रिबेल एट ऑल, एंड दे एक्सेप्टेड पुष्यमित्र शुंग एज देयर किंग। तो इस तरह से देयर वर मल्टीपल रीजन दैट लेड टू डिक्लाइन ऑफ मौर्यन रीजन, बट दिस इवेंट दैट इज पुष्यमित्र शुंगा मर्डरिंग दिस बृहद्रथ किंग, so this was one significant event that led to, that was last nail in coffin of Mauryan Empire.
I think you understood. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes. Was Pushyamitra Shunga was a ruler of Shunga dynasty or something? Yes. Did he? He is founder of Shunga dynasty. Thank you, ma'am. ओके सो ये जो थे जैसे मिलिट्री जनरल थे, इन्होंने किंग को खत्म करा और फिर शुंग डायनेस्टी को इन्होंने फाउंड करा. ही वाज फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी. मतलब मौर्यंस के सक्सेसर हैं शुंग. शुंग के बाद कन्वास हैं उनके जो फॉलो. फिर इसके साथ साथ ही जो है आपका सब्सिक्वेंटली दूसरे पीरियड जो है वो भी साथ में चल जाएंगे, जिसमें छोटे छोटे जो रूलर्स हैं वो रूल करेंगे. लाइक सातवाहनास, वो भी इस टाइम पीरियड में ही उनका राइज होता है. एनी अदर डाउट? किसी का और कोई डाउट है तो पूछिए इस चैप्टर से रिलेटेड. Okay, let's move to next chapter, that is the Mauryan Empire. So roughly this period extended from 4th century to 2nd century, that is 321 to 185 BCE. ये होता है. तो ये 321 is the period when Chandragupta Maurya he sat on throne by or coronated by Chanakya. तो ये टाइम पीरियड तब से है. In 326 BC अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया और 321 में जो है ये जो चंद्रगुप्त मौर्य ही गॉट कॉरोनेटेड हिमसेल्फ एज अ किंग. तो फिर क्या होता है देखिए, सबसे पहले उसने नंद एम्पायर को ओवरथ्रो करा एंड चाणक्य हु वाज हिज एडवाइजर, उनकी हेल्प से ही, और दिस चाणक्य इज सेम वन द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र. ओके, जिसे चाणक्य नीति के लिए भी जो फेमस है, दिस इज सेम चाणक्य. तो आप देखेंगे कि इन्होंने एम्पायर को फाउंड करा. फिर एक्सपेंशन कैसे होती है कि इन्होंने बहुत वॉर वेज करी थी. हिंदू कुश जो कि अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास ये पूरी रेंज है, वहां तक इन्होंने अटैक करा और दक्कन प्लेट्यू मतलब दक्कन तक जाके रूल करा. और इनकी जो मिलिट्री कैंपेन्स थी, इन्होंने जो अलेक्जेंडर की इन्वेजन की वजह से उसने अपने छोटे छोटे कुछ जैसे वहां पे पहले था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में छोटे छोटे रूलर्स रूल करते थे. जब अलेक्जेंडर ने उन्हें अटैक करा, ही डिफीटेड ऑल दीज रूलर्स एंड उसने अपने मिलिट्री जनरल्स वहां पे बिठा दिए थे. तो यहाँ पे एक चंद्रगुप्त मौर्य व्हाट ही डिड, इन्होंने वो सभी छोटे छोटे रूलर्स को हराया और जो ये मौर्यन एम्पायर है इसको अप टू हिंदू कुश तक एक्सटेंड कर दिया. तो इस तरह अलोंग विद अ गुड डिप्लोमेट ही वाज आल्सो गुड मिलिट्री लीडर. फिर हिज सक्सेसर वाज बिंदुसार. बिंदुसार एक्चुअली ही वाज आल्सो अ गुड, और ये एक पॉइंट आपको मैं बताना भूल रही कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ही हैड मैट्रिमोनियल रिलेशंस विद ये जो ग्रीक किंगडम्स हैं उनके साथ भी इसके थे. वन ऑफ हिज क्वींस वाज एक्चुअली ग्रीक प्रिंसेस वही थी. और इसी टाइम पीरियड में जो मेगास्थनीस हैं, जो एम्बेसडर थे, वो भी भारत में आते हैं एंड ही रोट अ बुक कॉल्ड एज इंडिका. तो जो हम फॉरेन अकाउंट्स पढ़ते हैं उसमें जो मेगास्थनीस की एक बुक है इंडिका, उसको भी पढ़ा जाता है, जबकि ये पूरी बुक अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट इसकी रेफरेंसेस मिलती हैं कहीं कहीं, तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं. तो ये जो उनका सक्सेसर इज बिंदुसार. बिंदुसार ही आल्सो वाज अ गुड मिलिट्री जनरल बट ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर मोर साउथवर्ड्स. तो दक्कन रीजन को कॉन्कर करा और अगेन ही वाज गुड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट नॉट टू मच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट हिम. अदर देन दैट ही वाज फॉलोवर ऑफ अजीविका सेक्ट. हमने पढ़ा था ना कि 6th सेंचुरी में 72 हेट्रोडॉक्स सेक्ट हैं जो उनका राइज होता है, तो उनमें से एक जो था वो ये भी था. उसमें से एक जो अजीविका सेक्ट है ये उसके फॉलोअर्स थे, और इन सेक्ट्स को भी आप ध्यान से डिटेल में पढ़ेंगे अपनी बुक में. सो ये था जब अपने पीक पे था मौर्यन एम्पायर. ये ध्यान से देखिए, ये देखिए अफगानिस्तान तक है, इधर साउथ तक है. साउथ में चोला चेरा पांड्या थे यहाँ पे, उनको छोड़ के बाकी हर जगह पे इनका रूल है. 1 सेकेंड, ठीक है. ये देखिए यहाँ पे तक्षशिला है, यहाँ पे पताला है, यहाँ मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, बोध गया, बाराबंकी, तोसाली इज दिस उड़ीसा रीजन, प्रेजेंट है उड़ीसा. ओके, यहाँ पे भी एक इंस्क्रिप्शन मिलती है अशोक की.
फिर उज्जैन, सांची, एंड देन सुवर्णगिरी, एंड अनुराधापुरम वाज नेम ऑफ श्रीलंका एट द टाइम पीरियड। तो ये देखिए कि इनका एम्पायर कितना बड़ा है, पैन इंडिया एम्पायर है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट एंड एक्सट्रीम साउथ को छोड़ के। ओके, अब बिंदुसार सन वाज अशोक द ग्रेट। सो उनके लिए ये स्टोरी है कि उन्होंने ही किल्ड हिज 100 ब्रदर्स एंड आफ्टर दैट ही सैट ऑन थ्रोन। तो उन्होंने पहले अपने 100 ब्रदर्स का मर्डर करते हैं, उनको किल करते हैं, और फिर वो इसकी जो मगध की गद्दी के ऊपर बैठ जाते हैं। बट बाद में एक इट वाज वन इम्पॉर्टेंट बैटल, दैट इज कलिंग वॉर, दैट टुक प्लेस विद उड़ीसा का जो रीजन है उसे कलिंग कहा जाता है, वहां के साथ इनकी वॉर होती है इन 260 BCE। और उसमें ही सॉ दैट अ लॉट ऑफ ब्लड शेड हैज हैपेंड, कि बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं। तो उन्होंने फर्स्ट हैंड जब अकाउंट लिया वॉर का, तो दिस लेड टू चेंज ऑफ हिज माइंड दैट आई डू नॉट वांट टू कमिट दिस काइंड ऑफ जेनोसाइड एनीवेयर एंड आई वांट टू शिफ्ट टू दिस रिलीजियस थिंग्स। तो ये जो एक कलिंग वॉर थी, उनका इन्फ्लुएंस इतना था कि आफ्टर दैट ही डिड नॉट वेज वॉर अगेंस्ट एनी रूलर। सो बेरी घोषा से धम घोष की तरफ ही शिफ्टेड। और फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारी एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो अलग अलग जगह पे भेजी हैं, लगाई हैं। उनमें से 14 इनकी मेजर इंस्क्रिप्शंस हैं। और आप देखोगे कि जैसे ये यहाँ तक इनकी इंस्क्रिप्शन है सुवर्णगिरी तक, और यहाँ वेस्ट में भी है, तक्षशिला में भी है। तो जहां तक ये एम्पायर का आपको एक्सटेंट दिख रहा है, यहाँ तक इनकी इंस्क्रिप्शंस भी आपको मिलती हैं। तो in those inscription, what did he used to say? He used to say that he used to say something about Buddha, the life of Buddha, then some teachings of Buddha around. फिर उसके बाद वो कहेंगे that you should respect your parents, then you should respect your king, और इस तरीके से एक तरह का फिलोसॉफिकल बातें भी उसमें करी गई है कि दैट यू विल अटेन, आपको मोक्ष प्राप्त होगा अगर आप राजा को फॉलो करते हैं, अपने गुरु को फॉलो करते हैं, अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। एंड इसके अलावा वो उसके बारे में एक इंस्क्रिप्शन है नॉर्थ वेस्ट में मिलती है, जिसमें वो वहां की जो ट्राइब्स थी कुछ, जो उन्हें उनके एम्पायर में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी, इवन वार्नड दैट, उनको चेतावनी भी दी जाती है दैट यू शुड माइंड योर वेज, अदरवाइज द रिजल्ट्स विल बी डिजास्टर्स फॉर यू। तो इस तरीके से बहुत सारी एडिक्ट्स क्या है, एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और उसके अलावा पिलर्स, अशोक के पिलर्स आर वेरी 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 फेमस। जो हमारे भारत का भी जो हम सत्य में जो हमारा स्तंभ है, एम्बलम है, वो भी हमने यहीं से लिया है। तो पिलर्स में क्या होता था, पिलर्स को आपको जो आर्ट एंड कल्चर की आपकी क्लासेस होंगी उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा दैट व्हाट वाज इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द पिलर, पिलर को कैसे बनाया जाता था। एक मोनोलिथिक पिलर होता था, उसके ऊपर एक कैपिटल बनाई जाती थी जो बुल होता था, जहाँ लायन होता था, इस तरह की फिगर जो होती थी। तो उसके थ्रू भी ही वांटेड टू असर्ट हिज, अपनी असर्टिवनेस को वो दिखाना चाह रहे थे कि दैट ये मेरा रीजन है, ये मेरा रूल है। तो और उसके ऊपर भी जो इंस्क्रिप्शंस है वो लिखी हुई होती थी। एक दिल्ली में ही जो फिरोज शाह कोटला फोर्ट है उसके ऊपर एक पिलर लगा हुआ है, दैट इज अशोकन पिलर ओनली। और एक दिल्ली रिज में भी एक पिलर है, वो भी अशोकन पिलर है, बट ये दोनों पिलर कहीं से दूसरी जगह से लाके यहाँ पे लगाए गए हैं। तो वो पिलर्स को भी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो था इनका बहुत एफिशिएंट था। लेट मी टेल यू कि इनका जस्टिस सिस्टम, इनका वेलफेयर जो स्कीम्स थी, पब्लिक वर्क, दैट वर एक्सीलेंट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, इनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत सेंट्रलाइज थी। सेंट्रलाइज इन द सेंस कि सेंटर जो है, देखो इनमें एक पूरा एक एम्पायर है एंड दैट एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस किंगडम्स, वेरियस प्रोविंसेस। तो हर एक प्रोविंस में एक गवर्नर होता था जो वहां का किंग के नाम पे यूज टू रूल। बट जैसे जो अशोक हैं वो भी दक्कन में उज्जैन के रीजन में गवर्नर रहे थे अपने फादर बिंदुसार के टाइम पीरियड में। लेकिन ये सारी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो ऊपर सेंटर से चलती थी कि राजा एंड उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे यूज्ड टू डिसाइड दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रस्टेड ऑफिशियल वी शुड सेंड टू पर्टिकुलर प्रोविंस। तो इस तरीके से, और इनमें ना जो इनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें भी बहुत सारे आपको आपकी बुक में नॉमेनक्लेचर्स है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे कि व्हाट, जैसे आप लोहाध्यक्ष वो पढ़ेंगे कि वो क्या करता था, जो ब्लैक स्मिथ्स होते थे उनका हेड होता था जो उनको लुक देखता था। फिर आप देखेंगे कि अमात्यास, महामात्यास, ये सब जो थे ये सब ऑफिसर्स थे
जिनका काम होता था कि ये एफिशिएंट रूल जो है उसके लिए हेल्पफुल होना। फिर उसके अलावा बहुत सारे रूलर्स जो गवर्नर्स होते थे, दे यूज्ड टू हैव सम काइंड ऑफ, एक कुछ सेना को वो अपने पास रखते थे, और जब किंग वॉर करता था तो उसमें उनको ये भी असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे। फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करी जाए तो एज आई टोल्ड यू, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि यहाँ से ट्रेड रूट दैट इज उत्तर पथ वो गुजर रहा है, जिसकी वजह से दे यूज टू उसके ऊपर टैक्स लगाते थे और अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और उसके साथ साथ ही ये क्या होता था कि इनका, अगेन आई टोल्ड यू कि बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही एलुवियल प्लेन्स जहाँ पे थे वहां पे ये रूल करते थे, तो एग्रीकल्चर वाज आल्सो फ्लरिशिंग एट द सेम टाइम। छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन है तो वहां से आयरन एंड अदर मिनरल्स के थ्रू इनको फिर टिम्बर इन्हें मिल जाता था, टिम्बर मिलता था। ये जो इनका पार्ट है, ये जो फॉरेस्टेड पार्ट है साउथ ईस्ट सॉरी सेंट्रल एशिया का, उससे ये टिम्बर भी कलेक्ट करते थे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो था इनका बेस्ट था, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट इस तरीके से था, दे मेड 5 कमेटीज, 5 कमेटी इन्होंने बनाई होती थी, ईच कमेटी हैड 6 मेंबर्स, और वो हर एक कमेटी इन चीजों का काम देखती थी कि रोड्स को कौन देखेगा, इरिगेशन कौन देखेगा, जैसे बर्थ एंड डेथ तक का रिकॉर्ड भी इनके पास रखा जाता था कि उसकी इंफॉर्मेशन भी ये पूरी कलेक्ट करते थे। और इस तरीके से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह का यहाँ पे दे यूज टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन। फिर कल्चरल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट में आप देखेंगे कि बुद्धिज्म जो है उसका राइज यहाँ पे इस पीरियड में बहुत होता है। एज यू नो दैट बुद्ध जो अशोक थे, ही बिकेम प्रोपेगेटर ऑफ बुद्धिज्म, और उन्होंने अपनी वहां पे, आपने जब बुद्धिज्म के चैप्टर में आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट देयर वर 3 बुद्धिस्ट काउंसिल दैट हेल्ड, एंड उनमें से जो 3rd काउंसिल थी वो अशोक ने ही करवाई थी। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बुद्धिज्म का कैसे राइज हो रहा है, और इस काउंसिल में बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे उन्हें कंसोलिडेट और इंटीग्रेट करके बहुत ही अच्छे से एक तरह के कह सकते हैं कि तैयार कर दिया गया था, पढ़ने लायक बना दिया गया था। फिर है आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जो अशोक था, ही मेड 80,000 स्तूप, ठीक है। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तूप है सांची स्तूप, वो भी इट वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय अशोक ओनली। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे पिलर्स, जो मैंने अभी आपको बताया है, पिलर्स लगाए। फिर रॉक कट केव्स, एक धौली करके जगह है उड़ीसा में, वहां पे एक लाइव रॉक से एक एलिफेंट, हाफ एलिफेंट है, उसको भी कार्व करा गया है, जिसे आज तक का इंडिया में ओल्डेस्ट कोई भी रॉक कट आर्किटेक्चर या स्कल्पचर है उसे माना जाता है। धौली वाला जो है, ये जो एलिफेंट है उसे, और उसे भी अशोक के टाइम पीरियड में ही जो है कमीशन करा गया था। फिर रॉक कट केव्स और आपको देखने को मिलती है बाराबर केव्स में, गया में। उसके ऊपर ना एक बहुत ही, आप नोटिस करोगे अपने आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में, कि ये जो पिलर्स एंड रॉक कट केव्स हैं, इनके ऊपर एक बड़ी ग्लॉसी सी पॉलिश भी करी गई है। एंड आज भी ये जो वेल मेंटेन्ड है जो केव्स हैं, इवन आई पर्सनली विजिटेड दिस केव्स, तो बहुत ही आज भी एकदम, जब आप लाइट उनके ऊपर थ्रो करते हो तो बिल्कुल शाइन करती है, क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसी पॉलिश करी गई है जो आज भी डेमिनिश, जहाँ उसकी जो क्वालिटी है वो लो नहीं हुई है, डिटेरियोरेट नहीं हुई है। फिर एज आई टोल्ड यू द अशोक कैपिटल ऑफ, जो सारनाथ से मिली है वो हमारा नेशनल एम्बलम भी है। ये इतना, ये आई हैव इंक्लूडेड पिक्चर ऑफ सांची स्तूप। यू कैन से कि यहाँ पे अंदर जो है इसमें मिट्टी का स्ट्रक्चर है, फिर इसे कवर करा गया है ईंटों से, एंड देन स्टोन इज ऑल्सो यूज्ड, स्टोन यूज करा गया है। एंड ऐसा बिलीव करा जाता है कि जो भी एंशिएंट इंपॉर्टेंट स्तूप है, इन सब के अंदर जो बुद्ध हैं उनको जलाने के बाद जो उनकी राख थी, उनको अलग अलग जगह पे ऐसे रेलिक्स जिन्हें कहा जाता है, उन्हें दबाया गया है स्तूप के अंदर। अब हम देखेंगे इनका डिक्लाइन कैसे होता है। एज आई टोल्ड यू, वीक सक्सेसर्स, इंटरनल स्ट्राइप, एक्सटर्नल इन्वेजन्स, इनकी वजह से एम्पायर वीक हो गया, और बृहद्रथ जो था उसे पुष्यमित्र शुंग ने खत्म कर दिया, और जिसके बाद शुंग डायनेस्टी जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है। तो इसकी लेगेसी क्या है मौर्यन एम्पायर की? सबसे इंपॉर्टेंट लेगेसी बुद्धिज्म आर्ट एंड कल्चर के टर्म्स में है। क्या आप आर्ट एंड कल्चर में देखिए सांची स्तूप आज भी है, दो देयर आर लॉट ऑफ रेनोवेशंस दैट टुक प्लेस ऑन सांची स्तूप, बट आज भी जो उसका ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है दैट स्टिल एग्जिस्ट्स। उसके बाद स्कल्पचर जो आर्ट है, जैसे पिलर बनाए गए, पिलर्स के बाद रॉक कट केव्स बनाई गई, उनके ऊपर भी बहुत फोकस करा गया।
एंड इस तरीके से और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक आपको याद रखनी है दैट वी डू नॉट फाइंड एनी एविडेंसेस ऑफ पैलेसेस वगैरह के हमें एविडेंस नहीं मिलते हैं. व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पैलेसेस दैट ऐसा हिस्टोरियन बिलीव करते हैं कि दे यूज्ड वुड एंड टिम्बर टू कंस्ट्रक्ट दिस पैलेसेस. तो जिसकी वजह से ये पैलेसेस जो थे वो समय के साथ साथ जो है डिटेरियोरेट हो गए और खत्म हो गए. एंड कुम्भराहार एक जगह है बिहार में, वहां पे कुछ कुछ फाउंडेशंस जो है इन पैलेसेस की देखने को मिलती हैं. तो ये भी एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दैट इज एसोसिएटेड विद एज ऑफ मौर्यस. ये है कि वहां पे पैलेसेस मिलते हैं. एंड देयर इज वन फेमस थिंग, एक फॉरेन अकाउंट है जिसमें ये जिक्र करा जाता है कि मौर्यंस इतना सुंदर डिजाइन बनाते हैं कि ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान उसे क्रिएट कर सके. उसे ऐसा लगता है जैसे दैवी शक्तियां हैं, स्पिरिट्स हैं, उन्होंने बनाया हुआ है. इस तरीके से इनके मॉडर्न के आर्किटेक्चर की, आर्ट की प्रेज जो है वो करी जाती है. सो एक ये PYQ है, हम इसे पढ़ेंगे. आई नो द आंसर इज ऑब्वियस बट आई स्टिल वांट यू टू आंसर दिस. इसे हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट्स थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन. Whosoever praises the religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. First is Ashok, second is Samudragupta. Samudragupta is Gupta ruler who came into existence around 4th century AD. Then Harshvardhan, he was a ruler of Kannauj who came into existence in 7th century AD. Then there is Krishnadeva. He is Vijayanagar Empire's ruler who came into existence in 16th century AD. तो अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा. Ashoka. यस, अशोक ही है. इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं. वो इस तरीके से कि दैट जब आप विजयनगर एम्पायर पढ़ोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम पॉइंट ऑफ एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कृष्णदेवराय के ऊपर आते हैं. एंड इन नो वेयर इट इज मेंशन दैट ही कमीशन इंस्क्रिप्शन. उन्होंने कहीं भी कुछ इंस्क्रिप्शन जो करवाई हो इसकी जानकारी नहीं है, तो ये आप माइनस कर सकते हैं. देन हर्षवर्धन वाज मोर इनटू फिलोसॉफिकल थिंग्स, तो और उनकी भी कोई ऐसी फेमस इंस्क्रिप्शन एग्जिस्टेंस में नहीं है. समुद्रगुप्त जो है उनकी एक जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, प्रयाग प्रशिष्टि जिसे कहा जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. बट उसमें उन्होंने ज्यादा फोकस, उनके जो कोर्ट हिस्टोरियन है उन्होंने उसके ऊपर ज्यादा फोकस करा. हरिसेन जो है उन्होंने उसको लिखा है, फोकस करा गया है कि उन्होंने कैसे कैसे बाकी रूलर्स को हराया रादर देन ऐसे रिलीजियस बातें करने से. तो और इसका ऑब्वियस आंसर हमें पता है कि इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, रिलीजन के ऊपर अशोक ने बहुत अपना एम्फेसिस दिया और दिस अशोक इज द राइट आंसर. सो यू कैन से दैट क्वेश्चंस आर नॉट एक्चुअली वेरी टफ कि आप कर नहीं सकते. आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपने थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ा तो आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. फिर जो अशोकन एडिक्ट्स वगैरह वाला जो चैप्टर है और विद पिक्चर्स, वो आपकी बुकलेट में इंक्लूड करा गया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं. अब इस चैप्टर में जो भी आपके डाउट हैं आप पूछ सकते हैं. योर डाउट्स प्लीज. एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम जस्ट एक टर्मिनोलॉजी नहीं समझे. आपने बोला कलिंगा वॉर के बाद अशोक मूव फ्रॉम डैश टू धर्मघोष, और किससे? बेरी घोष इज अ वर्ड जिसका मतलब होता है युद्ध करना, किसी को मर्डर करके, खत्म करके फिर रूल करना. घोष इज कॉन्कर करना. बट धम्म घोष का मतलब है कि धर्म के थ्रू बाय यूजिंग रिलीजन आपने किसी को कॉन्कर करा. सो बेरी, BHERE जब BERE घोष जो है वर्ड यूज करा जाता है वो आपको अपनी बुकलेट में मिल जाएगा, एक्सप्लेन्ड मिल जाएगा. भेरी घोष टू धम्म घोष. ओके मैम, थैंक यू मैम. Welcome. Any other doubt? अशोक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रूलर है, आपको इसमें से बिल्कुल डाउट्स होने चाहिए और आपको पूछना भी चाहिए. सो आई इनकरेज यू टू काइंडली आस्क योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स. Ma'am, there are different groups, like there are scripts of Ashok, and because after he won, and there are आप which please ones are loudly- most important? आप थोड़ा लाउडली बोलेंगे. हाँ जी.
Am I audible now? Yes, you are audible. Yes, ma'am, I was saying yes. Ashok has many of his like scripts or stupas that he has left. Mm-hmm. So, which ones are like most important regarding UPSC? So for example, just now you showed us a PYQ. He has many more. He has many more that he has left, which have been now we know what they say now. So, which ones are like most important regarding UPSC? Because there are a lot of them. लुक, इसमें से 14 जो है वो मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं, रॉक के ऊपर जो है उन्हें कार्व करा गया है। फिर जो है कुछ जो है वो पिलर इंस्क्रिप्शन है, जिन्हें पिलर के ऊपर जो है उनको इंस्क्राइब करा गया है। फिर उसके बाद माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन है, जो कि ज्यादा है काफी नंबर में। तो आपको जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उनके ऊपर फोकस करना है, एंड जो 14 मेजर जो रॉक इंस्क्रिप्शन है उसके ऊपर। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि इन सभी में ऑलमोस्ट सेम ही बातें करी गई हैं। ऐसा नहीं है कि इस वाले इंस्क्रिप्शन में कुछ और बात हो रही है और दूसरे वाले में कुछ और बात हो रही है। ऑलमोस्ट सभी में ये ऐसी ही बातें, फिलोसॉफिकल बातें, इंस्ट्रक्टिव बातें करी गई हैं कि आपको अपना धर्म कैसे चलाना है, आपको गेस्ट जो आते हैं आपके घर में उनको कैसे ट्रीट करना है, आपको पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, राजा को आपको कैसे आदर देना है। तो सभी में आपको डुप्लीकेसी देखने को मिलेगी कि ऑलमोस्ट सभी में सेम ही बात हो रही है। बट आप पिलर इंस्क्रिप्शंस एंड जो मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन है उनको अच्छे से जरूर पढ़ें एक बार, कि उन्हें लिखा क्या हुआ है, अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार पढ़ लें कि उसमें लिखा क्या है। ओके Okay, ma'am. ठीक. किसी का और डाउट है तो पूछिए। इस चैप्टर में से तो आपके डाउट सच में होने चाहिए, क्योंकि इसमें तो हर साल जो हर दूसरे साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने तो जस्ट एक क्वेश्चन इंक्लूड करा है, देयर आर लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस एज वेल जो कि आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। Excuse me, ma'am. यस Is the timeline of Mauryan Empire is really important for the mains or prelims? लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको ईयर नहीं भी याद, फॉर एग्जाम्पल 321 से 185 बीसी तक वो होते हैं, तो आप कम से कम सेंचुरी याद कर रहे हैं कि 4th सेंचुरी से 2nd सेंचुरी तक इनका एम्पायर था। तो आप सेंचुरी भी याद कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको एग्जैक्ट ईयर लिखना है, क्योंकि ये भी जो ईयर है चंद्रगुप्त मौर्य वाला ये भी डिस्प्यूटेड है। तो आप क्या करिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप ये सेंचुरी लिख दो, 4th सेंचुरी से 2nd सेंचुरी तक मौर्यन एम्पायर था, आप ये लिख दीजिए। Thank you, ma'am. ओके, वेलकम। एंड इसमें से मेंस के क्वेश्चन इस चैप्टर में से काफी पूछे जाते हैं, आप उनको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बट यही है कि आपको बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चैप्टर की। नेक्स्ट डाउट प्लीज। और एक चीज आप जरूर करिए, जो कि आपको मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था, कि मैप जरूर करना। कोई भी आप एम्पायर पढ़ोगे, आप राष्ट्रकूट पढ़ोगे आने वाली क्लासेस में, तो हमेशा याद रखना कि भाई राष्ट्रकूट एम्पायर था कहाँ। पाल डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी की हम बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए भाई उनका एरिया कौन सा था। तो इसी तरह मौर्य का अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसके एम्पायर का एक्सटेंट कहाँ तक है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो सारा एरिया था इट वाज कॉन्कर्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसार। सिर्फ जो अशोक थे उन्होंने ये जो कलिंग रीजन था, तोसाली जो रीजन है, सिर्फ उसे ही जीता था। तो इसीलिए भी बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं अशोक की मिलिट्री जो क्वालिटी है उसको भी क्वेश्चन करते हैं कि भाई ही फॉट ओनली वन वॉर, और उसके बाद उन्होंने कोई वॉर भी नहीं लड़ी, और उसके बाद तो एम्पायर का डिक्लाइन ही स्टार्ट होता है। तो ये भी एक बहुत ही डिस्प्यूटेड रूलर है। एनी अदर डाउट? Okay, so this chapter is also very important. This chapter is called as the post-Mauryan age, that after decline of Mauryas or after death of Brihadrath, that is last Mauryan ruler, what happened? उनके बाद किसका रूल आता है? देखिए आप इसमें देखिए ये कितना बड़ा रूल इनका एम्पायर है।
बट अब पोस्ट मॉडर्न एज में क्या होगा, यू विल नोटिस कि यहाँ पे छोटे छोटे एम्पायर स्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड यहाँ पे आप नोटिस करिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट सीई, दैट इज अब हम कॉमन एरा में एंटर हो चुके हैं। आने दे दो, ठीक है। तो बीसीई ये देखिए ये कितनी सेंचुरीज है, लगभग 500 सेंचुरी की, ये सॉरी 500 साल की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप, यहां से स्टार्ट होके यहां तक रफली आप देखोगे कि 500 पीरियड्स का टाइम पीरियड है। तो इसमें हमें एक एक डायनेस्टी को वो पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट जो है कि कौन सी डायनेस्टी पहले आती है और कौन सी बाद में आती है। सबसे पहले रीजनल किंगडम्स में हम पढ़ेंगे, एज आई टोल्ड यू कि पुष्यमित्र शुंग ही किल्ड बृहद्रथ, तो उसमें ये 185 बीसीई से 75 बीसीई तक इनका रूल रहता है, वही लगभग आप कह लीजिए 100 साल के आसपास जो है इनका रूल है, ठीक है। इनकी, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ही वॉज अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण थे, इस वजह से अ लॉट ऑफ पैट्रोनेज वाज गिवन टू हिंदुइज्म। उन्होंने बहुत यहाँ पे हिंदुइज्म का विस्तार करा। और क्योंकि ये जो मॉरियंस जो थे, इनकी जो ये किस वर्ण से थे ये काफी डिस्प्यूटेड है। कुछ कहेंगे कि ये जो थे वैश्य कम्युनिटी के थे, और एक है वो कहते हैं, एक हिस्टोरियन कहते हैं कि एक वुमन कॉल्ड मुरा उनका नाम था, शी वॉज अ शूद्र वुमन, और उनकी जो उनसे बर्थ होता है इनका चंद्रगुप्त मौर्य का, तो मुरा से मौर्य वर्ड जो है वो पड़ता है। तो कुछ कहेंगे कि नहीं वो शूद्र कम्युनिटी के थे, कुछ वैश्य का कहेंगे, तो कुछ कहेंगे इस तरीके की इनकी जो लीनियज है दैट इज वेरी डिस्प्यूटेड। बट जो पुष्यमित्र शुंग थे ही वॉज ब्राह्मण। तो उसके बाद उन्होंने लॉट ऑफ पैट्रोनेज वाज गिवन टू हिंदुइज्म एट दैट टाइम, और उन्होंने भी आर्ट के ऊपर बहुत फोकस करा। फॉर एग्जांपल अ स्तूपा, फेमस स्तूप कॉल्ड एज बारहुत स्तूप जो है, उसको भी शुंग डायनेस्टी के जो ही रूलर्स हैं, पुष्यमित्र शुंगा के जो सक्सेसर होते हैं अग्निमित्र वगैरह, वो जो है इसको कमीशन करते हैं। और एक अभी कुछ साल पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि एक पुष्यमित्र शुंगा के जो सन थे अग्निमित्र, उनकी और एक जो एक कोटेशियन है मालविका, उसके साथ उनकी जो लव स्टोरी है वो एक लिटरेचर में मिलती है। और उस लिटरेचर का नाम बताइए, उस लिटरेचर का नाम है मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका एंड अग्निमित्रम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज मालविका अग्निमित्रम, और ये भी एक जो एक बहुत ही फेमस लिटरेरी सोर्स है। तो ये यहाँ से एक देखिए आप, उन्होंने क्वेश्चन तो कुछ और है, हम डायनेस्टी पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं पुष्यमित्र शुंगा की, बट देखिए उन्होंने क्वेश्चन कैसे पूछ लिया कि उन्होंने आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसके जो सन जो अग्निमित्र है उसकी जो लव स्टोरी है उसका नाम क्या है। ओके, तो इस तरह के फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। फिर शुंग डायनेस्टी का जब डिक्लाइन हो जाता है, फिर कन्वा डायनेस्टी जो है वो आती है। जिस तरीके से शुंग्स ने मौर्यंस को हरा दिया था, वैसे ही कन्वास जो थे उन्होंने शुंग को हरा दिया। और देखिए इनका तो टाइम पीरियड भी बहुत छोटा सा है, 75 बीसीई टू 30 बीसीई, इनका बहुत ही छोटा इनका टाइम पीरियड था। और इनको रिप्लेस करा सातवाहनों ने। सातवाहन जो है दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सातवाहन जो है उनका रूल यहाँ पे आ जाता है। बट आप देखेंगे कि जो मौर्यस थे उनकी कैपिटल इज इन दिस पाटलिपुत्र, जहाँ राजगृह के आसपास है। बट जो सातवाहन है ये अपनी कैपिटल को मूव करते हैं दक्कन रीजन में। ओके, और इन्होंने प्रमोट करा ट्रेड एंड कॉमर्स, स्पेशली विद द रोमन एम्पायर। उस टाइम जो रोम का एम्पायर था वो बहुत फ्लरिश कर रहा था। ओके, तो वो जो सातवाहना किंग्स थे, इन्होंने रोमन एम्पायर के साथ अपने जो ट्रेड रिलेशंस थे उनको बहुत अच्छे से स्टेब्लिश करा। एंड फिर ये होता है कि इन्होंने जो आप अजंता एंड एलोरा की जो केव्स के बारे में भी सुनोगे, वो कि एलोरा तो थोड़े बाद के टाइम पीरियड की है, अजंता जो है उसको इन्होंने ही कमीशन करा था। मतलब ऐसा नहीं कि वो 1-2 साल में अजंता की केव्स बन के तैयार हो गई थी, उनको भी कई 100 साल का उनका एवोल्यूशनरी पीरियड है। बट स्टार्ट किस पीरियड से उनका हो जाता है, सातवाहन पीरियड से। एक तरह का जो एलोरा अजंता केव्स है उनका उनको रॉक से काटना जो है इस पीरियड में स्टार्ट हो गया। और एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये लोग अपना ट्रेड कैसे करते थे। ये ट्रेड रोम के साथ ऐसे करते थे कि रोम को जो भारतीय प्रोडक्ट जैसे आइवरी वगैरह बहुत पसंद होती थी।
बट ये आइवरी के बदले रोम से गोल्ड लेते थे, तो बैलेंस ऑफ जो ट्रेड होता है उसका जो वो भारत के पक्ष में था, मतलब इनके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल था। इसीलिए एक हिस्टोरियन हुए हैं पल्लिनी, वो तो रोमन्स को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज भी करते हैं कि देखिए आप जो है आपको भारतीय प्रोडक्ट्स की इतनी ज्यादा लत लग गई है दैट यू आर ड्रेनिंग योर गोल्ड टू इंडिया। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि सातवाहनास हैड अ वेरी प्रॉस्परस ट्रेड रिलेशंस विद आउटसाइड इंडिया, जहां ओवरसीज इंडिया में इनका बहुत था। फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के ही जो एम्पायर थे, ये देखिए ये तीनों भारत के एम्पायर है, शुंग हो गया, कानबा हो गया, सातवाहना हो गया, बट देयर वर, क्योंकि अब देखिए अब एक बहुत ही पावरफुल जो एम्पायर था मौर्यन एम्पायर, उसका डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन होने की वजह से और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और सब कॉन्टिनेंट ये भी वीक हो जाता है, यहाँ पे डिफेंस वीक हो जाती है। एंड ऑल इंपॉर्टेंट इन्वेजन दैट टुक प्लेस इन इंडिया वर फ्रॉम दिस पार्ट ओनली, कि वेस्ट से ही, हमेशा नॉर्थ वेस्ट से ही सारे इन्वेजन हुए हैं। आप देखोगे कि मानो जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी अगर मानो कि वो सच है, ऐसा कहते हैं, तो उसमें भी नॉर्थ वेस्ट से आ रहे हैं। फिर उसके बाद इस टाइम पीरियड में देखिए जो इंडो ग्रीक्स वगैरह, अलेक्जेंडर है वो भी उस साइड से आ रहा है। फिर इंडो ग्रीक्स हैं, इंडो स्काइथियंस हैं, कुशान एम्पायर है, ये सब के सब, कुशान डायनेस्टी है, ये सब भी उसी साइड से ही आ रहे हैं। फिर आप उसमें इस्लामिक रूल में जब मिडिवल इंडिया में देखोगे कि जो इस्लामिक इन्वेजन भारत पे होंगे वो भी इसी तरफ से ही होंगे, क्योंकि नॉर्थ की तरफ जो हिली रीजन है वहां पे काराकोरम रेंज है, और वो काराकोरम रेंज इतनी ऊंची है कि उसे तो क्रॉस करना ही टफ है। अगर बात करी जाए ये यूपी वाले रीजन की, तो उसके ऊपर भी सब हिली रीजन है, पहाड़ है, और इस तरह की जो हिमालय है उसने भारत को डिफेंस प्रोवाइड कर रखा है। पर नॉर्थ वेस्ट में माउंटेन पासेस तो है, माउंटेन रेंजेस तो है, बट उसमें पासेस भी है, गोलन पास है वहां पे, सॉरी गोलन पास है वहां पे, एक और पास है जिसके अंदर से होते हुए वो लोग आ जाते हैं भारत में, एंटर कर जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे हमारी डिफेंस वीक हुई उसके वजह से जो बहुत सारे फॉरेनर्स थे उन्होंने भी भारत में आना स्टार्ट करा। फॉर एग्जाम्पल इंडो ग्रीक किंगडम, इट गॉट एस्टेब्लिश्ड। आप खुद देखिए कि ग्रीस कहाँ है और भारत कहाँ है, उन लोगों ने वहां से उठ के यहाँ पे भी एक जो है अपनी, एक अपना सत्रप बोलते हैं कि जो प्रोविंस टाइप, तो 20th जो अपनी सत्रप थी वो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ही स्टेब्लिश कर ली थी। ओके, तो इसमें डिमित्रियस जो थे उन्होंने इन्वेड करा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को, और स्प्रेड ऑफ हेलेनिस्टिक आर्ट जहां यहाँ पे उसका राइज होता है। हेलेनिस्टिक आर्ट क्या है? एक वहां पे एक फेमस क्वीन हुई थी हेलन, जिसे आपने हेलन ऑफ ट्रॉय वगैरह अगर आपने मूवी देखी है तो उसमें भी आपने देखा होगा, एंड शी वॉज वेरी फेमस फॉर हर ब्यूटी। तो कोई भी ब्यूटी की जो चीजें हैं आर्ट से रिलेटेड, तो उसे ये हेलेनिस्टिक आर्ट कह देते हैं। तो उसमें फ्यूजन क्या था, उनमें कुछ ग्रीक एलिमेंट होते हैं जो उस आर्ट में, और भारत में जो, क्योंकि उनका भारत के साथ कांटेक्ट हुआ, तो इसी टाइम पीरियड में ग्रीको बुद्धिस्ट जो आपकी आर्ट फॉर्म है वो आपकी सामने आती है, जिसे गांधार आर्ट फॉर्म भी कहा जाता है। गांधार इस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो रीजन है उसे गांधार, जो प्रेजेंट है कांधार भी है, उसे गांधार रीजन कहा जाता था, अफगानिस्तान कह सकते हैं आप। तो वहां पे भी जो आर्ट फ्लरिश होती है, दैट आपने भी देखा भी होगा कि जब तालिबान का कब्जा होता है अफगानिस्तान में, तो वहां पे एक बामियान बुद्ध की एक बहुत बड़ा मिट्टी का, नॉट मिट्टी, पत्थर को तोड़ के वहां पे बुद्ध की एक स्कल्पचर थी जिसे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो वो गांधार रीजन में थी, गांधार मतलब कांधार रीजन में। कौन कौन इस न्यूज को जानता है? Yes, ma'am. There are videos of them है ना, blasting. वो वही है गांधार। It took power in 2000. दे डिस्ट्रॉयड इट बिकॉज उनका आइकॉनोग्राफी के अगेंस्ट है वो, तो इसलिए उन्होंने डिस्ट्रॉय वहां पे कर दिया। तो ये वही रीजन है, गांधार एंड कांधार आर सेम थिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनका धीरे धीरे जो ग्रीक फीचर्स हैं वो हमारे आर्ट फॉर्म्स में आने स्टार्ट हुए। फिर ग्रीक्स के बाद इंडो स्काइथियन जो है, जिन्हें शक रूलर या साक रूलर, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन जो है इनकी है, वो आते हैं सेंट्रल एशिया के जो स्टेपी रीजन है। स्टेपी रीजन होता है ग्रासलैंड्स वगैरह वाला रीजन, वहां से ये लोग आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, और इन लोगों ने भी बुद्धिज्म को पेट्रोनेज दी, और बुद्धिज्म जो है वो यहाँ पे इस रीजन में फ्लरिश करा। फिर इनके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जिसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, दैट इज कुशान।
ये एक यूजी जो ट्राइब थी सेंट्रल एशिया की, ये उससे ओरिजिनेट होते हैं। और बहुत सारे और भी रूलर हैं जो आपको बुक में देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स कनिष्क। कनिष्क की दो कैपिटल्स थी। एक कैपिटल थी पेशावर में, पुष्यावती कहा जाता था पेशावर को, और दूसरी इसकी कैपिटल थी मथुरा में। ओके, तो ये इन्होंने भी आर्ट एंड कल्चर को बहुत 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 बढ़ावा दिया। और इनके टाइम पीरियड पे जो महायान बुद्धिज्म है, जिसे लिबरल स्कूल ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है, उसका बहुत वास्ट मतलब एक्सटेंट होता है। फिर इनका ट्रेड फ्लरिश होता है ड्यू टू सिल्क रोड के साथ साथ, जो सिल्क रोड आपने चाइना की पढ़ी ही होगी, उसके उससे ये लोग टैक्सेशन कलेक्ट करते थे। और इसकी वजह से अब देखिए, जब इनका फिर रेवेन्यू बढ़ना शुरू हुआ, तो रेवेन्यू बढ़ने की वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे इनका जो एम्पायर है वो कंसोलिडेट होना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए, ये एम्पायर देखिए कितने लंबे समय तक, 300 साल तक रूल कर रहा है। लेकिन उससे पहले जो है, ये तो कभी आ रहे हैं और कभी जा रहे हैं, बहुत छोटा इनका टाइम पीरियड है। तो कुषाण एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए, क्योंकि इसके बाद अब सीधा गुप्त एम्पायर ही आएगा। थोड़ा सा एक छोटा सा बीच में ट्रांजिशनरी पीरियड है, उसके बाद जो है गुप्त पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कि गोल्डन एज या क्लासिकल एज भारत की वो भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुषाण एज में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कनिष्क। कनिष्क ने वहां पे, फिर कनिष्क की कुछ, चलो आर्ट एंड उसकी बात करते हैं कि आर्ट को कैसे इन्होंने बढ़ावा दिया, वो अगली स्लाइड में आएगा। लेकिन एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ कि ही वॉज शैवाइट, मतलब शिव का भी पुजारी था वो, और बुद्ध को भी वो मानता था। तो उनकी जितने भी आर्ट फॉर्म्स मिलेंगी ना आपको, तो उसमें इवन इनके जो कॉइन्स मिलेंगे कुषाण के, गोल्ड कॉइन्स, इस टाइम पीरियड में जो गोल्ड कॉइन्स है वो फ्लरिश होना शुरू हो गए थे। और जो मौर्यन पीरियड में पंच मार्क्ड कॉइन्स जो थे वो आ गए थे। तो मतलब सबसे पहले वो जो करेंसी थी वो पंच मार्क्ड, अराउंड वही मगधन पीरियड या मौर्यन टाइम पीरियड में ही आती है। और इस टाइम पीरियड में ये जो गोल्ड के कॉइन्स है वो भी आने शुरू हो गए। तो एक तरह का आप देखोगे कि इकोनॉमी या करेंसी में भी इनका जो है एवोल्यूशन हो रहा है। तो ये महायान बुद्धिज्म के फॉलोवर थे जो कुषाण जो कनिष्क थे। फिर आप देखेंगे कल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इस टाइम पीरियड, दैट इज पोस्ट जो आपका मॉडर्न फेज है, जो 500 साल का ये टाइम पीरियड है, उसमें होता है। तो ये इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड रूट्स, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड रूट। ये देखिए आप, ओवरलैंड मतलब सिल्क रूट, आप सिल्क रोड जो है, आपने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा होगा कि चाइना इज ट्राइंग टू रिवाइव इट्स सिल्क रोड, एंशियंट सिल्क रोड। तो व्हाट वाज दिस सिल्क रोड? आप देखोगे कि एशिया का जो ऊपर वाला पार्ट है, इट्स लैंड, सिर्फ लैंड है। तो चाइना का ईस्टर्न पार्ट से शुरू होके, ईस्ट कोस्ट से शुरू होके, ये लैंड से होता हुआ बहुत सारी कंट्रीज को कवर करता हुआ अप टू यूरोप, यहां तक इनको ये सिल्क रूट मानते थे। सिल्क रोड का मतलब था कि सिल्क जो है उसका ट्रेड करते थे ये इसके थ्रू। इस रोड का तो नाम ही रोड का सिल्क रोड है, वो पड़ गया। वो है ओवरलैंड। दूसरा है मैरीटाइम, मैरीटाइम ही समुद्र के रास्ते से। तो चाइना से, यहाँ से जहाँ भारत, ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, साउथ चाइना सी है, वहां से आप देखोगे कि भारत का ट्रेड जो था वो चाइना, मिडल ईस्ट, रोमन एम्पायर सबके साथ था इस टाइम पीरियड में। और फिर उसके बाद आप देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा फ्लरिशमेंट होती है। सॉरी, आई मिस्ड वन पॉइंट कि यहाँ पे ट्रेड का एक्सचेंज करने का, सॉरी, जो ट्रेड की कौन सी आइटम्स थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इस टाइम पीरियड में? सबसे पहले स्पाइसेस। इंडियन स्पाइसेस वर सो पॉपुलर अमंग ये जो रोमन्स के साथ, एज आई टोल्ड यू कि गोल्ड वगैरह का भी, मतलब गोल्ड को वो एक्सचेंज करते थे पेपर के साथ। तो इस तरीके से फिर टेक्सटाइल्स, भारत की टेक्सटाइल्स बहुत फेमस थी। फिर जेमस्टोन्स, फिर प्रेशियस मेटल, इस तरीके से करते करते आप देखेंगे कि जो भी लग्जरी जो ट्रेड है वो भी इस रूट से हो रहा है। फिर बात आती है आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। तो इसमें आप देखोगे कि एक ही स्टाइल यहाँ पे फ्लरिश नहीं हुआ। अब क्या है, इंडिजिनस स्टाइल के साथ, इंडिजिनस होता है किसी भी लैंड का अपना जो कोई भी चीज होती है, उसके साथ साथ जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है वो भी आना स्टार्ट हो गया, राइट। तो फॉरेन एलिमेंट्स में हम देखेंगे गांधार आर्ट में, जिसे ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट, फिर एक दूसरा स्कूल मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, एंड तीसरा इज अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा ऑब्वियसली मथुरा रीजन के आसपास, गांधार इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो वाला, और फिर अमरावती इज प्रेजेंट डे ये तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश रीजन।
तो वहां पे, और इन तीनों में अलग अलग डिस्टिंक्शन था। गांधार आर्ट में बुद्ध को किसी और तरीके से दिखाया जाता है कि वो स्पिरिचुअल फॉर्म में है, वो किसी और मुद्रा में होंगे, उनके बाल करली होंगे, उनकी ड्रेप जो है वो अलग टाइप से होगी, वो किस मूड में होंगे। मथुरा स्कूल में अलग तरीके से स्टोन अलग यूज करा होगा, कि मथुरा स्कूल में उनके कान कैसे होंगे। जैसे गांधार आर्ट में आप देखोगे कि उनके सर के पीछे हेलो हेलो होता है, ऐसे लाइट सी गोल सी बना देना, जिससे ये पता चले कि वो एक डिवाइन फिगर है। तो इस तरीके से, और जो मथुरा स्कूल है उसे उन्हें एक सेंट की तरह ही दिखाया गया है मथुरा स्कूल में। उसमें मुद्रा अलग होगी, उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग होगा, बियर्ड होगी हल्की हल्की या नहीं होगी, और वो किस तरीके से बैठे हुए हैं, कि कौन सा पोज दे रहे हैं। तो ये वेरिएशन आपको मिलेगी। और उसके बाद अमरावती स्कूल के फीचर्स क्या है, उसमें आप देखोगे उसमें व्हाइट जो मार्बल वगैरह है, स्टोन है, उसका यूज वो लोग करेंगे। तो इस तरीके से ये वेरिएशन जो है मिलनी शुरू हो जाती है। उससे पहले जो एक ही तरह की आर्ट फॉर्म चलती आ रही थी, इस टाइम पीरियड में अलग अलग वेरिएशन स्टार्ट हो गई। फिर बाद में इसमें एक स्तूप, मोनेस्ट्रीज, रॉक कट केव्स लाइक अजंता एंड एलोरा, वो भी इसी टाइम पीरियड में बनती है। अजंता एंड एलोरा आपने पढ़ा ही होगा कि अजंता जो है वो बुद्धिस्ट सेक्ट है, इसके साथ रिलेटेड है। वहां पे पहले तो पत्थर को काट के वहां पे रॉक अंदर केव्स बनाई हुई हैं, केव्स नहीं रूम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स करी हुई हैं। और जो एलोरा है उसमें जैन, बुद्धिस्ट एंड हिंदुइज्म तीनों से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर हैं वो मिलते हैं। उसमें आपके टेम्पल भी हैं, टेम्पल के साथ साथ आपके जो है उसमें पेंटिंग्स भी मिलेंगे। और एक तो बहुत ही फेमस जो टेम्पल है जिसे कैलाशनाथ टेम्पल कहा जाता है, एक ही रॉक है, उसे काट के एक लाइव टेम्पल निकाला गया है उसके अंदर से। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपकी बुक में भी इसकी फोटो है, कि एक ही लाइव पत्थर है और उसे कहीं भी कोई जॉइंट नहीं है, कोई सीमेंटिंग मटेरियल यूज नहीं हुआ है, और पूरे पत्थर को काट के एक बहुत बड़ा कैलाशनाथ जो टेम्पल है वो बना दिया गया। एंड इट वॉज कमीशन बाय राष्ट्रकूट, जो कि इसके बाद के टाइम पीरियड में आएंगे 7th सेंचुरी के आसपास। कई कई सालों तक ये बनती रही, कई सौ साल तक बनती रही। वैसे ही एलोरा, और एलोरा में बनते बनते 7th सेंचुरी के आसपास राष्ट्रकूट्स ने ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है उसको भी बनाते हैं। फिर बात आती है रिलीजन एंड फिलोसफी की। रिलीजन एंड फिलोसफी में सबसे पहले इसमें इस टाइम पीरियड में वेरियस रिलीजियस मूवमेंट्स एंड फिलोसफी जो है वो जो है स्प्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म तो आपने देखा कि वो इससे पहले आ चुके थे, बट अब क्या हुआ, उससे पहले उनका बर्थ हुआ था। बर्थ होने के बाद उनको रॉयल पैट्रोनेज मिली, तो वो कुछ कुछ एरिया में फैलते रहे। बट क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों के थ्रू, ट्रेडर्स के थ्रू एंड इवन रूलर्स के थ्रू जो बुद्धिज्म का इम्पैक्ट है वो बाकी रीजन्स पे भी पड़ना शुरू हो गया, लाइक साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, जापान, कोरिया, वहां तक। और आज भी सबसे ज्यादा जो फेमस है वो महायान बुद्धिज्म है, दैट इज जिसे लिबरल स्कूल ऑफ बुद्धिज्म कहते हैं। कि ये लोग आपको इम्प्रोवाइज कैसे करना है, बोधिसत्व को ये रेलेवेंस देंगे। तो इस तरीके से ये जो महायान बुद्धिज्म है उससे ज्यादा प्रोमिनेंस मिलती है, क्योंकि इवन जो कनिष्क है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, वो भी महायान बुद्धिज्म का फॉलोवर है। और आप देखेंगे कि आने वाले टाइम पीरियड में आप पढ़ेंगे कि हर्षवर्धन का जब आप टाइम पीरियड पढ़ोगे, कि जो हर्ष है वो भी महायान बुद्धिज्म का ही फॉलोवर बन जाता है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूम सेंग हु वाज अ चाइनीज फॉरेन ट्रेवलर। तो इस तरीके से रिलीजन है। उसके साथ साथ हिंदुइज्म तो साथ के साथ बढ़ ही रहा था, क्योंकि आप देखोगे कि जो ये जो शुंग हैं, ये ब्राह्मण्स हैं, ये बहुत ही इस चीज को बढ़ावा देंगे। बहुत सारी फिलोसफीज हैं लाइक वैष्णविज्म, शैविज्म, ये और शक्ति पूजा इवन वो भी इस टाइम पीरियड में जो है उसमें राइज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो शक्ति एंड तांत्रिक वर्शिप है, दैट ऑल्सो स्टार्टेड हैपनिंग इन दिस टाइम पीरियड ओनली। फिर इन इसके साथ साथ जो रिवाइवल ऑफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिंदुइज्म, जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की वजह से कुछ ना कुछ जो हिंदुइज्म की पॉपुलैरिटी थी उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। बट इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि यहाँ पे जो हिंदुइज्म की पॉपुलैरिटी है उसको उसमें राइज आता है, बिकॉज कनिष्क दो he gave patronage to Buddhism as well, but he was follower of Shaivism as well.
ठीक है। और जैसे कुछ टेक्स्ट है लाइक महाभारत है, रामायण, इनको भी इसी टाइम पीरियड में कंपोज करा गया। ओके। और एक बहुत 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 सिग्निफिकेंट फीचर आपको याद रखना है कि यही टाइम पीरियड था जब भक्ति मूवमेंट जो है उसका राइज होता है। भक्ति मूवमेंट क्या है उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जैसे उससे पहले क्या फोकस करा जा रहा है कि आपको जो रिचुअल्स हैं, सेक्रीफाइस हैं, उनके ऊपर एम्फेसिस करके यू कैन प्लीज गॉड। बट इन भक्ति मूवमेंट व्हाट द भक्ति सेंट सेड दैट जस्ट वर्शिप, भगवान की अंदर से मन से आप वर्शिप करते हो, देन दैट इज सफिशिएंट टू प्लीज गॉड। आप जैसे भगवान का बार बार नाम लेते रहना। इन मिडिल एज आप पढ़ोगे कि जैसे मीरा हुई है, गुरु नानक, कबीर हुए हैं, ये सब रिसाइट करते रहते थे भगवान का नाम, और इनके अकॉर्डिंग इसी के थ्रू भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो जैसे, लेकिन वो तो मिडिवल एज के हैं, ये भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होती है साउथ में। जैसे उनमें एक सेक्ट, दो सेक्ट का राइज होता है, एक विष्णु के फॉलोअर्स थे और एक थे जो है शिव के फॉलोअर्स थे। तो एक उनमें कुछ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन ही फॉलोअर्स थे, उसमें फीमेल जो अंडल है, एक फीमेल आप पढ़ोगे जो स्कॉलर थी अंडल, वो भी भक्ति सेंट थी, उनके बारे में आप पढ़ोगे। फिर इसको नया, हाँ, अलवार्स एंड नयानार इनको बोला जाता है, जो शिव के फॉलोवर्स थे और जो वैष्णविज्म के। जो अलवर्स थे वो वैष्णविज्म के फॉलोवर्स थे और जो नयानार थे वो शिव के फॉलोवर्स थे। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, भक्ति का राइज होता है, और ये लोग कहते हैं कि सिर्फ भगवान की भक्ति करके ही आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। और इसका जब पीरियड का धीरे 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 राइज होता है तो बहुत सारे भक्ति सेंट लाइक ये जो है हमारे रामानुजाचार्य वगैरह तो चलो मिडिवल एज में आएंगे, उससे पहले भी जो आएंगे जो वेदांत फिलॉसफी को प्रोपेगेट करेंगे, वो भी देखिए इस टाइम पीरियड में जो भक्ति मूवमेंट है वो जो अलवार्स एंड नयानार्स के थ्रू स्टार्ट होनी, जो फ्लरिश होनी शुरू हो जाती है, और मिडिवल एज तक आते आते तो वो और भी कंसोलिडेट हो जाती है। सो ये दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट मॉडर्न एज। इसके बाद कल आपकी जो क्लास है उसमें आपको गुप्त एज, गुप्तास के बारे में पढ़ाया जाएगा, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ाया जाएगा, और जो भी सब्सिक्वेंट डायनेस्टीज हैं और सब्सिक्वेंट एम्पायर्स हैं, उसके अलावा ईस्ट में कौन से एम्पायर्स थे उस टाइम, साउथ में कौन से एम्पायर्स थे, उनकी क्लासेस आपकी होगी। अब आज की क्लासेस में जो जो आपके डाउट्स हैं वो आप अपना पूछ सकते हैं, बिकॉज आई थिंक ये बहुत सफिशिएंट है, अदरवाइज बहुत ओवरलोड हो जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन एंड आप याद नहीं रख पाएंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज पूछें। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम कल जो भी सेशंस हुए थे जिससे पहले हुए थे उसमें हमें बोला गया था कि पहले पीवाईक्यूज इवैल्यूएट करें फिर एनसीईआरटी स्टार्ट करें, बट सिंस अभी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो अभी कैसे करें हम, क्योंकि मैंने अभी पीवाईक्यूज इवैल्यूएट नहीं किया, उसे करने में मुझे कुछ हफ्ते लग जाएंगे। मैं आपको एक सिंपल तरीका इसका बता देती हूँ। आप गूगल पे जाइए, आप सिंपली टाइप करिए कि हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स यूपीएससी, कुछ ऐसे लिखिए। आपको 2-3 पहले ही लिंक्स में एक आपको कंपाइल्ड फाइलें मिल जाएंगी जिसमें सारे अब तक के हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो आपको कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाएंगे। फिलहाल आप उसे डाउनलोड करके उसे एक बार देख सकते हैं, गो थ्रू। और जब आपको बुक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, बुक्स आपको जैसे जो जो आपका सब्जेक्ट खत्म होता जाएगा उसके साथ साथ आपको बुक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, लाइक एंशिएंट खत्म, हिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो इसके साथ, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री एक ही बुक में है, तो मिडिवल हिस्ट्री खत्म होते ही आपको बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप इस चैप्टर, इन सभी चैप्टर्स को बहुत डेप्थ में पढ़ सकते हैं। बट मीनवाइल आप क्या करिए, आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें से देखिए और साथ साथ एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि ये जो बुक्स हैं वो थोड़ी एडवांस हैं। बिना एनसीईआरटी के आपको इजीली समझ नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी सीधे एनसीईआरटी से आते हैं। दो हमने जो बुक्स तैयार करी हैं उनको हमने बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से लिया है, बट अपने अपना बेस जो है एनसीईआरटी रखा है। इसीलिए मैंने आपको कल मैसेज में भी सबको लिखा कि आप पी.आर.एस. शर्मा के एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू हो जाइए, और पीवाईक्यू आप साथ में इंटरनेट पे आपको कंपाइल्ड फाइलें मिल जाएंगी, आप उसमें से कर सकते हैं। फिर जब आपको बुक प्रोवाइड हो जाएगी तो आप फिर डेप्थ में जाके इनको सॉल्व करिए। ओके मैम। एंड मैम एक डाउट और था, मैं कुछ एनसीईआरटीज देख रही थी तो उसमें 6th की भी है कुछ, जो पुरानी एनसीईआरटीज है रोमेला, प्रोफेसर रोमेला की, वो हमें रेफर करनी है या नहीं करनी? नहीं करनी है, आपको मैं लिमिटेड सोर्सेज ही बताऊंगी और आप उन्हीं को ही करिए। आर.एस. शर्मा इनफ है आपके लिए, और फिर जो आपको बुकलेट प्रोवाइड करी जाएगी वो सफिशिएंट है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि कभी भी आप पेपर में
एंशियंट हिस्ट्री की ही बात कर ली जाए तो मानो 5 क्वेश्चन भी आए हैं तो आप कभी भी हमेशा ऐसा होगा कि 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। इवन हिस्ट्री ऑप्शनल के होने के बावजूद आई फेस द सेम प्रॉब्लम कि ऐसे भी इतनी डेप्थ में पढ़ने के बाद भी 2-3 चीजें तो ऐसी 2 क्वेश्चन तो ऐसे होते थे जिनको कभी सुना ही नहीं। तो यूपीएससी जानबूझ के वो क्वेश्चंस को इस तरीके से डिजाइन करती है ताकि आपकी एक्यूरेसी 100% ना रहे, क्योंकि आपको देखो 200 में से 200 मार्क्स तो लाने नहीं है। और इसीलिए यूपीएससी की ट्राई यही रहेगी कि उसमें कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, और ये हर सब्जेक्ट के साथ होगा। ये इन्वायरमेंट के साथ भी होगा, पॉलिटी के साथ भी होगा, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ होगा, साइंस एंड टेक के साथ होगा। तो आप सब ना करो, कम से कम 80% सिलेबस आप कर पाओ, ये हमारा फोकस है। तो इसके लिए आई थिंक ये दोनों बुक सफिशिएंट है, आपको इसके अलावा कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, ओके मैम, यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। और जिसके डाउट्स हैं अभी आप पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास कुछ टाइम है अवेलेबल। मैम 2 क्वेश्चंस हैं। जी जी बोलिए। एक क्वेश्चन से जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात की हम लोगों ने, तो उसमें इस समय हम देख रहे हैं कि इस पीरियड में, स्पेसिफिकली इस पीरियड में, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, there is a lot of fusion between like foreign arts, Greek art and Indian art. So like Gandhar and Mathura School of Art, like as far as UPSC goes, how important are these? Like since there is art and architecture is a specifically course in it, so do we need to like remember their different key concepts and like specific monuments that they have been made in like different art types? ओके, क्योंकि प्रीवियसली भी यूपीएससी ने इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, डिफरेंसेस पूछे हैं, ये जो गांधार में, अमरावती स्कूल में, मथुरा स्कूल में। तो इससे क्या पता चलता है कि यस यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बट एट द सेम टाइम आपको आर्ट एंड कल्चर की अलग से एक बुक प्रोवाइड करी जा रही है जिसमें बहुत डिटेल में जा जाके, बहुत डेप्थ में जा जाके इन सारे पीरियड्स को समझाया, इन सारे इनके फीचर्स को समझाया गया है विद पिक्चर। तो वहां पे फोटो भी आपको साथ में दी गई है कि देखिए ये गांधार स्कूल की फोटो है, ये मथुरा की है। तो आपको सही में ये टॉपिक करने पड़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी में ये क्वेश्चन तो इवन मेंस में बहुत बार पूछा गया है कि ग्रीक एलिमेंट्स कौन से मिलते हैं। ग्रीक के अलावा इवन ये जो है सॉरी आपके ग्रीक के बाद आपके इंडिजिनस जो है वो कौन से एलिमेंट मिलते हैं। तो इन सबको तो आपको बहुत बारीकी में याद करना ही है, क्योंकि बार बार, एक बार नहीं कई बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सो ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत डेप्थ में करना पड़ेगा। हाँ, थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो ज्यादा क्लियर नहीं है। मोस्टली एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे तो लाइक दे आर वेरी वेग। इवन इफ वी talk about Satavahanas, there are only like few mentions of like Roman trade and the coins that we have found in India and then in Rome too. So in this aspect, how deeply should I go and like read it? इसका मैं एक मेथड बताती हूँ। आप पता क्या करिए, जो हमने पहले क्लासेस में बात करी, एक आप वही A4 शीट लीजिए, उसमें टेबल बनाइए और सभी टाइम पीरियड में इकोनॉमी का एवोल्यूशन कैसे हो रहा है वो आप माइक्रो नोट्स एक बना लीजिए कि देखिए इंडस वैली में इकोनॉमी कैसी थी, वैदिक में कैसी थी, महाजनपद के टाइम कैसी है, मौर्यंस के टाइम कैसी है, बाद में पोस्ट मौर्यन में कैसी है, बाद में गुप्तास के पीरियड में कैसी है। तो इस तरीके से आप खुद इम्प्रोवाइज करके ना अपने एक माइक्रो नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये चीज मैंने भी करी थी कि सोसाइटी का अलग बना दिया। मतलब मैं कहूंगी कि एक पेज पे आपका पूरा ही एक एस्पेक्ट कवर हो जाएगा, सोसाइटी कवर हो जाएगी, दूसरे पेज पे आपने इकोनॉमिक्स कवर कर लिया, तीसरे पे पॉलिटी कर लिया, चौथे पे इस तरह करके 5-6 पेजेस में तो आपके सारे के सारे एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे। एंड ये आपको मेंस एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसका फ्रूट जो है वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप टेबुलर फॉर्म जो है उसमें बना सकते हैं एवोल्यूशनरी टाइप में। like different based on like history को different divided में, जैसे ancient के लिए अलग, medieval के लिए अलग, like सिर्फ one aspect उसके लेके, economic aspect लेके on one page, how they evolved from one period to another period. That's the whole point.
हाँ, मुझे तो लगता है आप मिडिवल के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हुए हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस कर करके ही कोई चीज जो है वो बड़ी बन गई। तो आप अगर एवोल्यूशनरी में मिडिवल का भी एक पेज ऐड कर देंगे तो वो भी आपके लिए बहुत आसान रहेगा। आप ये काम भी कर सकते हैं कि फ्रंट में आपने एशियंट का लिख दिया और पेज के बैक में आपने मिडिवल का भी बना दिया। तो इस तरीके से आपके दोनों के दोनों सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं बिल्कुल। Okay, ma'am. Thank you. वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम, डू वी हैव टू लर्न ऑल द 16 महाजन पद और जस्ट कैन हैव द आइडिया? देखो, अभी ना आपको देखने को लगेगा कि ये महाजन पद याद करना बहुत टफ है, बट बिलीव मी, अगर आप पेपर पेन लेंगे, मैप को इसको हाथ से अगर आपने 2-3 बार ड्रॉ कर लिया तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और मैप के जब आप ड्रॉ करेंगे ना तो उसको स्टोरी में याद रखिए कि अच्छा मगध यहाँ पे है, इसको काशी जो है डौरी में मिली, तो मतलब काशी इसके आसपास होगी। फिर इन्होंने सबसे पहले मल्ला एंड वज्जी को जीता, मतलब वो भी इसके आसपास होंगे। फिर अवंती की बात आती है, उसकी आप कैपिटल याद रख लो कि उज्जैनी कहाँ है। उज्जैनी आपको पता है मालवा रीजन में, मध्य प्रदेश, तो वहां पे उज्जैनी बना दी। फिर आपको पता है कि कुरु जो है, कुरुक्षेत्र वाले रीजन है उसमें है, आपने वहां पे वो बना दिया। आपको पता है कि जो कोसाला रीजन है वो प्रेजेंट अयोध्या के रीजन में, आपने वहां उसे मार्क कर दिया। आपको मैंने बताया कि साउथ में एक ही है 16 महाजन पद में से एक, अस्मक, आपने वो वहां बना दिया। फिर आपको पता है कि कंबोज एंड गांधार जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भारत के वहां पे है, आपने वहां बना दिया। तो देखिए, इतना सब जान के ही आपको 16 के 16 महाजन पद याद हो जाएंगे। इसके लिए तो फिर जो एक दूसरी है, एक जो राजस्थान वाली भी है, वो भी आप वहीं पे छेदी जो है उसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो इससे आपको देखो पता चल रहा है कि आप स्टोरी फॉर्म में पढ़ेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएंगे, जैसे अभी मैंने ही बोल के बता दिए। तो ये टफ नहीं है, इनके बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। इनकी कैपिटल पढ़ लीजिए और कैसे ये एक्सटिंक्ट हो गई, या किसने इसको मर्ज कर लिया, ये पढ़ लीजिए। एंड दिस इज नॉट इवन टफ, आप 2-3 बार हाथ से ड्रॉ कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, कोई और डाउट आपका? Ma'am, just one request. ओके, Ma'am, please do share these slides before the tomorrow's class so that we can go through at once. Because ठीक है। there's so many new terms and so many things to learn. तो वो Okay. हमारे लिए easy हो जाएगा so that we will get hang of all this thing. ठीक है, मैं ये भी कर सकती हूँ। दूसरी ऑप्शन ये है कि जो हाँ। आपको बुक प्रोवाइड करें, मैं उसकी कुछ ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं उसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूं, Yeah, अगर आप, yes ma'am. है ना? चलिए, हाँ। तो मैं ये And करूंगी। हाँ जी, ये स्लाइड्स हमने इससे पढ़ा है तो इट वुड बी आल्सो इजी टू रिलेट, और ठीक है, पीडीएफ भी इफ पॉसिबल भेज दीजिए। ठीक है। तो मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। और रही बात पीडीएफ्स की, तो आई डोंट, इसको पढ़ लिया तो उसके बाद तो आप बुक ही पढ़ लेंगे, तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। हाँ तो मैं, हाँ, एनीथिंग हाँ, वुड बी यही फाइन। यही शेयर कर दूंगी। ओके, आप ओके, मुझे इतनी को एक बार रिमाइंड करवाइए, मैं आपके साथ कल की भी और आज की भी दोनों स्लाइड्स जो हैं वो शेयर कर दूंगी। श्योर श्योर मैम, श्योर, थैंक यू। कोई और स्टूडेंट कुछ कहना या पूछना चाहता है? आपकी 2 क्लासेस और होंगी और उसमें आपकी पूरी एंशियंट हिस्ट्री जो है कवर हो जाएगी, बेसिक जो है। फिर उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। मिडिवल में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें भी आपको बहुत आराम से आप चीजें समझ जाएंगे, और बुक पढ़ के तो आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल आज हमने लगभग काफी हिस्ट्री कवर कर ली है। हम एडी में एंटर कर चुके हैं, एडी में भी 300 एडी तक हम पढ़ चुके हैं। कल हम गुप्त एम्पायर पढ़ेंगे, हर्षवर्धन पढ़ेंगे। तो कल भी हमारा ऑलमोस्ट, कल हम हमारी हिस्ट्री कल सेकंड क्लास के बाद कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अब जो भी आपने डाउट है आप प्लीज पूछ लीजिए। Ma'am, can you share this PPT in the group itself? आई विल शेयर इट, आई विल शेयर इट टुडे ओनली। Okay, thank you, ma'am. ओके, और किसी को कुछ कहना है? And ma'am, also I think it won't be considered to be today, but for tomorrow, once you will share all those slides और वो जो book आप share करेंगी, तो that is more of a elaborative form.
उसमें हमें कितना डेप्थ तक पढ़ना है, या लाइक वी हैव टू गो थ्रू एंटायर बुक? देखिए वो जो, हाँ जी आप प्लीज। और ये जो हमारा स्लाइड है, इट इज मोर ऑफ अ लाइक इट्स अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, थैंक यू। मतलब हाँ ऑब्वियसली लाइक इतने अच्छे से सारे पॉइंट्स हाइलाइटेड हैं, तो इट्स वेरी इजी टू गो थ्रू दिस स्लाइड्स। बट जब हम बुक पढ़ेंगे तो हमें कितना डेप्थ में जाना है, सो दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न। बुक की बात करी जाए तो उसे मैंने ही एडिट और कंपाइल करा है, और मैंने पूरा इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार करा है कि उसे आपको डेप्थ में जाने की, क्योंकि जितनी डेप्थ में जाना है मैंने वो प्रोवाइड कर रखा है। तो उस बुक, वो ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, वो छोटी सी ही किताब है और उसे नोट्स फॉर्म में ही एक तरह का तैयार करा गया है। बट उस बुक को आप ध्यान से पढ़िए। उस बुक में जितनी इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सारी बुक में हमने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डाले हैं, हमने कोई स्टोरी वगैरह उसमें बिल्ड करने की कोशिश नहीं करी है। तो उस बुक को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होगा, और ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, आप खुद देखेंगे कि वो बुक को आप इजीली कर पाएंगे। और उसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप पीवाईक्यू साथ साथ जरूर देखते रहे, ताकि आपको पता चले कि कोई पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसको आपको कितना ध्यान या कितना फोकस देने की जरूरत है। लाइक स्टोन एज है तो कम देना है, ये मॉडर्न एज है तो थोड़ा ज्यादा देना है, तो ये साथ में जरूर देख ले। ओके, या ओके मैम। ठीक है। कोई और डाउट किसी का? आई थिंक हमने सारे डाउट्स ले लिए हैं। बाकी रही बात ये स्लाइड्स की, तो ये मैं आज आपके चैनल पे शेयर कर दूंगी। कल आपकी क्लासेस रहेंगी मॉर्निंग में एंड जो 12 बजे दोनों टाइम एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस रहेगी। फिर हम अपने मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक अब हमें अपना सेशन एंड कर देना चाहिए। ओके, थैंक यू ऑल फॉर योर काइंड अटेंशन एंड फॉर योर टाइम, और बने रखने के लिए और आपके कोऑपरेशन के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और आई एक्सपेक्ट कि आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एंड फील फ्री, अगर आपको कोई भी डाउट इस सब्जेक्ट में आता है तो मुझसे कनेक्ट करिए, मुझसे आप पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को सॉल्व कर पाए। ओके, थैंक यू सो मच।